Good afternoon, everyone. A very warm welcome to all the participants joining us today for this insightful webinar on reassessment notice under Section 148 and e-verification scheme under Section 135A under the Income Tax Act practice strategies to protect your client. This initiative has been thoughtfully organized under the guidance of C.A. Dr. Raj Chawla, whose continuous effort to bring meaningful and practical learning opportunities to professionals truly deserve appreciation. With this, now I will request C.A. Dr. Raj Chawla sir give the welcome address of today's speaker, C.A. Advocate Shikhar Garg sir. Thank you, Satyam. Good afternoon, everyone. First of all, I welcome all of you in this today webinar on reassessment notice under Section 148 and e-verification scheme under Section 135A under the Income Tax Act. Practical strategies to protect your client. And today we have with us very young and dynamic CA advocate Shikhar Garg. I welcome CA Shikhar Garg. And today CA Dolly Pandya ji will moderate the session. Welcome, Dolly ji. Dolly ji, very sincere and very hard-working professional. And today our guest speaker will cover the complete playbook for handling Section 148 reassessment notices. How does the e-verification scheme trigger reassessment proceedings? What information must you demand before filing a reply? Hidden procedural safeguard that can win your client case. The most common mistakes professionals make in Section 148 proceedings: drafting replies that stand the text of appellate scrutiny and recent judicial development. Every text professional should know. And friends, I want to also request all of you, if you have any query, either you please note down that query in our this chat box, or you can ask directly with our speaker, because this our Zoom connection has this facility that you can ask directly during deliberation. Or if you want, then after this deliberation, he will take up all your queries. So with this, I request CA Dolly Madam to please take over this webinar. Thank you. Good evening, sir. Good evening, everyone, and my very warm welcomes to today's webinar. Thank you, sir, for giving me the opportunity to be a moderator of this session. On behalf of the organizing team, I extend my cordial welcome to all our distinguished participants who have joined us today. We are delighted to have you with us for this insightful session. I sincerely thank our organizer, CA Dr. Raj Chawla sir, for his vision, leadership and continuous efforts in organizing such knowledge enriching sessions for the professional fraternity. It is my privilege to introduce our esteemed speaker, CA Shikhar Garg sir. Mr. Shikhar Garg sir qualified as a chartered accountant in May 2017 at the young age of 21 years. He began his professional journey with Bharat Petroleum Corporation Limited, Mumbai, where he worked for 4 years, 2018 to 2022, gaining extensive exposure to finance, audit and corporate governance. During this period, he simultaneously pursued and completed his US CPA qualification. In 2022, he joined his family CA practice and gradually developed a deep interest in taxation, reassessment, litigation, administrative laws and economic offense laws, which eventually led him to pursue his LLB. His transition into legal practice added a strong litigation dimensions to his career. Over the years, he has successfully represented several clients before the Income Tax Appellate Tribunal. In 2025, he expanded his practice before the Delhi High Court, especially in the areas to economic offences, white-collar matters, and the interplay of taxation with criminal laws. Mr. Garg is also an active speaker and knowledge contributor. He has delivered lectures at ICI study circles, including sessions on economic offences, PMLA compliance, reassessment under the Income Tax Act, and litigation strategy for professionals. His sessions are widely appreciated for clarity, practicality, and
real case insights tailored for chartered accountants. With a blend of corporate experience, tax expertise, and litigation practice, he continued to build a strong niche in tax litigation, economic offense laws, and high stake appellate advocacy. We are delighted to have him with us today and are confident that his insights will be highly informative and beneficial for all the participants. Without further ado, I warmly invite C.A. Shikhar Garg sir and like to enlighten us with the today's session. Sir, please start your deliberation. Thank you, ma'am. Respected CA Dr. Raj Chawla ji, respected Dolly Madam ji, Satyam ji for introducing me, and all my friends. ये वेबिनार एक इतना अच्छा इनिशिएटिव है फॉर not only for the chartered accountants but for all the professionals to share knowledge. The ultimate purpose is to share and gain knowledge, because knowledge is such thing which always increase when you share it. And via this platform by CA Dr. Raj Chawla ji, it is such a great medium for all the tax professionals, or in fact all the professionals. And the best thing which I found here is that without missing any week, Raj Chawla sir every week, in fact twice a week, आपका सेशन होता ही होता है. चाहे बाहर बारिश आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे किसी भी तरीके की सिचुएशन हो, बट चावला सर डेडिकेशन इज सच दैट ओवरऑल प्रोफेशनल्स के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है टू रादर गेन नॉलेज एंड अर्न नॉलेज. एंड जब नॉलेज आती है तो ऑब्वियसली प्रोस्पेक्ट्स इंक्रीज होते हैं, फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स इंक्रीज होते हैं, एंड इन केस नॉलेज जब अप्लाई होती है तो उससे ग्रोथ होती है. तो सर्टेन नॉलेज व्हेन इट इज बीइंग अप्लाइड, एप्लीकेशन हम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो हमें खुद ही करनी है. एप्लीकेशन नोबडी कैन इंस्टिल यू कॉन्फिडेंस कि आपको अप्लाई करना है. एप्लीकेशन आपको खुद ही करना है. मोटिवेटर्स आर देयर बट दैट हार्डली वर्क फॉर फ्यू डेज. अल्टीमेटली आपकी ओन विलिंगनेस इज व्हाट मैटर्स. एनीवेज, आज का जो टॉपिक है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू रीअसेसमेंट प्रोसीजर्स. रीअसेसमेंट लॉ अंडर द इनकम टैक्स एक्ट is one of the draconian laws in India. Recently, 30th June 2026 was the last date, and then the last week of June, Income Tax Department has issued various 148 notices, primarily relates to assessment year 2022, 2023 and assessment year 20 and 21. So I'll share my PPT with you. So this is Satyam, visible है मेरी PPT? Yes, sir. Visual है. So it is reassessment procedures under 148 and e-verification scheme under 135 capital A. This is the new introduction. Reassessment procedures बहुत सालों से है, but e-verification scheme 135 capital A.
this is being introduced by Finance Act 2020 and इसके बारे में we will discuss कि कैसे because of e-verification scheme आजकल नए तरीके की 148 डिपार्टमेंट्स जो है वो इशू करने लगा है। तो सबसे पहले तो अगर हम ये समझे तो जो रीअसेसमेंट प्रोसीजर्स है दैट हैज नॉट बीइंग इनिशिएटेड इन 1961 एक्ट, ये उससे पहले 1922 एक्ट में भी था। एंड इसकी हिस्ट्री जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब तक हमें हिस्ट्री नहीं पता होगी तब तक इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द लॉ। कोई भी लॉ जब अगर हमें समझना है तो हमें उसके हिस्ट्री से पता होना चाहिए, उसका क्या एवोल्यूशन पॉइंट था वहां से हमें पता होना चाहिए, देन ओनली हम उसकी करेक्ट एंड बेटर इंटरप्रिटेशन कर पाते हैं। तो रीअसेसमेंट प्रोसीजर्स वाज इंट्रोड्यूस इन 1922। उस समय सेक्शन 34 होता था एंड उन्होंने बोला कि आप प्रीवियसली जो पोजीशन सेटल्ड हो चुकी है उसको अनसेटल कर सकते हैं। मीनिंग देयर बाय अगर कोई असेसमेंट जो फाइनलाइज हो चुकी है लेकिन सब्सिक्वेंटली बेस्ड ऑन सम इंफॉर्मेशन और मटेरियल ये डिटरमाइन होता है डिपार्टमेंट को कि असेसमेंट जो फाइनलाइज हुई है वो रॉन्ग हुई है, इन दैट केस रीअसेसमेंट प्रोसीजर्स ओपन होते थे। जो इसका फाउंडेशन था वो धीरे धीरे जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ है अब वो धीरे धीरे डाइल्यूट होता गया है। मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे डाइल्यूशन में आता गया है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इसका क्या फाउंडेशन था। तो 1922 में रीअसेसमेंट लॉ बहुत ज्यादा ड्रैकोनाइन था बिकॉज इट कुड बी रीओपन टिल 8 years। आज की डेट में एज ऑन टुडे रीअसेसमेंट प्रोसीजर्स की टाइम लिमिट क्या है? कोई मेरे को बता सकता है? कोई चैट बॉक्स में बता सकते कि क्या टाइम लिमिट है रीअसेसमेंट प्रोसीजर्स? व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर रीअसेसमेंट प्रोसीजर्स? कोई अगर मेरे को कोई शेयर करना चाहे, अगर चैट बॉक्स में नहीं भी चाहते कोई वैसे शेयर करना चाहे, तो व्हाट इज द टाइम लिमिट ऑफ रीअसेसमेंट प्रोसीजर्स? 4 to 6 years। मैडम नहीं, 4 to 6 years नहीं अब रीअसेसमेंट के प्रोसीजर्स की टाइम लिमिट एज ऑन टुडे नॉट फॉर एज ऑन 2025 फ्रॉम द एंड ऑफ द टैक्स ईयर्स 4 to 6 year है, बट फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर ये एक तरीके से 3 to 5 years है। सेम ही बात हो गई टैक्स ईयर एंड असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर जब 3 to 5 years है तो टैक्स ईयर 4 to 6 years हो जाएगा। बट एनीवेज जो रीअसेसमेंट प्रोसीजर्स एज ऑन टुडे है वो अब सिर्फ 3 and 5 years है। पहले रीअसेसमेंट प्रोसीजर्स कुड हैव बीन देयर टिल 8 years। इवेंचुअली आज की डेट में तब जब रीअसेसमेंट प्रोसीजर्स होता था तो असेसिंग ऑफिसर को रीजंस टू बिलीव ड्राफ्ट करने होते थे। देयर हैज टू बी सर्टेन टैंजिबल मटेरियल बेस्ड ऑन विच ही बिलीव्स, उसका अपना बिलीफ होना चाहिए, बिलीफ हैज टू बी इन राइटिंग कि देयर इज एन एस्केपमेंट ऑफ इनकम। तो इसका मतलब पहले देयर शुड बी अ टैंजिबल मटेरियल एंड देन उसका बिलीफ होना चाहिए। Reasons mean certain tangible material. Belief means his own satisfaction. Based on tangible material and his own satisfaction, it should be in writing, which shows that income has escaped. And उस केस में रीअसेसमेंट ओपन हो सकता था। But in Finance Act 2021, certain changes come. Meaning thereby Finance Act 2021 promulgated a new reassessment scheme, and in that scheme primarily
the reasons to believe is being changed, is being replaced by the information suggesting escapement of income. Meaning thereby, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले जो रीजंस टू बिलीव हमें लिखने होते थे, असेसिंग ऑफिसर को लिखने होते थे इनिशिएट करने के लिए रीअसेसमेंट, वो रीजंस टू बिलीव एक सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन थी। सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन का क्या मतलब है? सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन का मतलब है कि वो रीजंस टू बिलीव ड्राफ्ट होते थे असेसिंग ऑफिसर के ओन एप्लीकेशन ऑफ माइंड पे। मीनिंग देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि 4 अलग अलग असेसिंग ऑफिसर है और उन 4 असेसिंग ऑफिसर ने अपनी सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड करी और उस रिकॉर्ड से दो ऐसे लग सकते थे असेसिंग ऑफिसर को, ये लग सकता था अगर एक हम रीजंस टू बिलीव 4 असेसिंग ऑफिसर को दे सपोजिंगली, तो 2 असेसिंग ऑफिसर को ये लग सकता था कि इससे एस्केपमेंट हो रही है और 2 असेसिंग ऑफिसर को ये लग सकता था कि इससे कोई एस्केपमेंट नहीं हुई है। तो देयर वाज नॉट एनी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया कि ये अगर चीज आई तो आपको रीअसेसमेंट करना ही करना है। एक सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन होती थी, और जब सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन होती है इट प्राइमरली मीन्स कि देयर इज अ स्कोप ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। आर्बिट्रेरीनेस का क्या मतलब? मीनिंग देयर बाय दैट द सेलेक्टिव स्ट्रैटेजी कुड बी अडॉप्टेड बाय द असेसिंग ऑफिसर। अगर एक असेसिंग ऑफिसर के पास सपोजिंगली उसके वार्ड में 100 इंडिविजुअल्स है, तो माइट बी पॉसिबल कि वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को टारगेट करने के लिए रीजंस टू बिलीव ड्राफ्ट करे एंड नोटिस 148 का इशू कर दे। तो दैट सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। मीनिंग देयर बाय कि अब आज की डेट में आफ्टर 2021 जो भी लॉ है उसको इफेक्टिवली असेसिंग ऑफिसर के पास बैक एंड डिटेल्स आएगी जिसके बेसिस पे वो रीअसेसमेंट कर सकता है। तो जैसे कि मैं अगर आपको सिचुएशन बताऊं, जो मैं कई चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करता हूं या कहीं मैं इंडिविजुअल एसएससी से बात करता हूं, वो कहते हैं कि अगर हम उनकी सपोजिंगली स्क्रूटनी चल रही है और वो ये कहते हैं कि अगर हम जो है ये वाली इंफॉर्मेशन देंगे तो क्या पता असेसिंग ऑफिसर जो है हमारे रीअसेसमेंट प्रोसीजर पिछले सालों के ओपन कर दे। इस तरीके की बात बहुत नेचुरल आती है कि क्या असेसिंग ऑफिसर पिछले सालों के मेरे रीअसेसमेंट ओपन कर देगा बिकॉज अगर मैं उसको सर्टेन इंफॉर्मेशन दे दूंगा। तो आफ्टर 2021 इस तरीके की अगर असेसिंग ऑफिसर के पास कोई इंफॉर्मेशन आ भी गई, देन ऑल्सो उसको बैक एंड इंफॉर्मेशन आनी पड़ेगी फ्रॉम द इनसाइड पोर्टल। और वो कैसे आएगी वो मैं आपको समझाऊंगा कि वो कैसे एक्चुअल डिवाइस होती है। तो मीनिंग देयर बाय अब कोई सेलेक्टिव टारगेटिंग के ऑप्शंस नहीं है असेसिंग ऑफिसर के पास इन इशूइंग द रीअसेसमेंट नोटिस। ये बात क्लियर हो गई है कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया आएगा, सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया का मतलब कि बिकॉज एक इवेंट हैज हैपेंड और वो इवेंट अगर और 5-6 लोगों के साथ हैपन हो तो सब 5-6 लोगों को आएगा। अब ऐसी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई है कि सिर्फ एक को आ जाए और बाकी 4 उसी तरीके के केस हो उनमें ना आए। उस तरीके की पॉसिबिलिटीज फाइनेंस एक्ट 2021 ने खत्म कर दिया बिकॉज नाउ इट इज नॉट बीइंग बेस्ड ऑन रीजंस टू बिलीव, इट इज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन सजेस्टिंग जो उनको बैकएंड से आती है। अब हमें यह समझना है कि ये बैकएंड से इंफॉर्मेशन कैसे आती है, कैसे ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो बैकएंड से आती है। कोई बताना चाहेगा कि कैसे ऐसे इंफॉर्मेशन बैकएंड से डिपार्टमेंट को आती है जो पहले नहीं आती थी? बैंक्स अपलोड करते हैं ट्रांजेक्शन्स लाइक एफडी इंटरेस्ट या सेविंग इंटरेस्ट या शेयर्स वाले जो डीमैट में कोई ट्रांजेक्शन है वो रिपोर्ट होती है। इस तरह से इनकम टैक्स को जानकारियां मिलती हैं। या कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं या सेल करते हैं, वो रजिस्ट्रार आप जो प्रॉपर्टी होता है वो अपलोड करता है, तो इसी इंफॉर्मेशन मिलती है डिपार्टमेंट को। करेक्ट। तो सबने प्राइमरली ये बताया है कि देयर वाज अ सेक्शन
जो कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के मैंडेट करता है, मीनिंग देयर बाय सर्टेन एलिजिबल पर्संस है जो 114 कैपिटल ई ऑफ द इनकम टैक्स रूल्स बताते हैं कि दीज आर द पर्संस लाइक बैंक, स्टॉक ब्रोकर्स, सब रजिस्ट्रार्स। तो इस तरीके के पर्सन जो है उनको मैंडेट करा है कि यू हैव टू प्रोवाइड सर्टेन इंफॉर्मेशन, दोज आर द एसएफटी ट्रांजैक्शंस। तो उन एसएफटी ट्रांजैक्शन से डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन जाती है। सेकेंडली इट माइट बी पॉसिबल कि ट्रांजैक्शंस हो रही है बिकॉज ऑफ टीडीएस टीसीएस स्टेटमेंट्स, ट्रांजैक्शंस हो रही है because of certain information exchange with the foreign jurisdiction, transactions हो रही है because of the investigation wing wherein any search and survey has happened on the other assessees। तो ये सारी इंफॉर्मेशन टूल्स है जो आज की डेट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फॉर्मुलेट करी है, एंड ये सारी इंफॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल रहती है। अब ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन जब अवेलेबल रहती है तो उससे 148 कैसे इशू होता है? सर इसका कोई जवाब देना चाहेगा कि अगर डिपार्टमेंट के पास इतनी सारी, हमने सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन पता कर लिया है, सब यहाँ पे मेरे को बताया लोगों ने कि एआईएस के बेसिस पे, नाउ 148 कैसे इशू होता है? एआईएस के बेसिस पे डिपार्टमेंट के पास dearth ऑफ इंफॉर्मेशन आ गई, माइट बी पॉसिबल दे हैव इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मेनी थिंग्स। किसी का यह है कि अगर आईटीआर में नहीं दिखाया है, ओके सर, दिस इज नॉट द ओनली रीजन कि आईटीआर में नहीं दिखाया है कि उनके पास इंफॉर्मेशन आया, आईटीआर में नहीं दिखाया और उसके बाद उन्होंने नोटिस भेज दिया। दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज कि वो इंफॉर्मेशन को स्क्रूटनाइज करके चेकिंग करे कि आईटीआर में शो हुआ है कि नहीं हुआ। बट देयर आर different strategies which is being formulated by different strategies which is being formulated by CBDT। जैसे कि one of the strategy is, and ये strategy every year CBDT formulate करती है। एग्जाम्पल के तौर पे एक स्ट्रैटेजी है कि इन केस नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न कैटेगरी पहले पर्संस को उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, उनके पास dearth ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इसमें सब्सटेंशियल हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स आ रही है, देन उन केसेस में वो 148 इशू कर देते हैं। या फॉर एग्जांपल अगर उनको बहुत ह्यूज ट्रांजेक्शन्स दिखती है एंड इन ट्रांजेक्शन्स में उनको दिखता है कि कोई टीडीएस या टीसीएस कलेक्ट नहीं हुआ है, तो उस तरीके की ट्रांजैक्शन सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस के तौर पे बन जाती है, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू इशू 148 नोटिसेस। या फॉर एग्जांपल अनदर एग्जांपल आई विल गिव कि दे हैव dearth ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल एंड इन दैट इंफॉर्मेशन दे फाउंड दैट देयर इज ह्यूज फॉरेन इनकम which is coming to the assessee, but the assessee has not shown the corresponding foreign assets in his ITR। FA schedule में, foreign asset schedule में आपने assets कुछ भरे नहीं हैं एंड आप शो कर रहे हैं या डिपार्टमेंट को पता लग रहा है बिकॉज ऑफ फॉरेन जुरिस्डिक्शन दैट आपकी टैक्सेबल इनकम है, तो दैट दोज आर द केसेस व्हिच एक्चुअली ट्रिगर्स 148। तो अब आपको ट्रिगर का इंपैक्ट पता लगा कि ट्रिगर कैसे होते हैं, बट इशू अभी ये है कि ये जो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज फॉलो होती है, ये रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज डेवलप सीबीडीटी करता है, लेकिन वो जो स्ट्रेटजीज है वो शेयर नहीं करता, मीनिंग देयर बाय
जो उनके ऑडिट इंडिकेटर्स या पैरामीटर्स है जो उन्होंने डिवाइस करे होंगे एक फाइनेंशियल ईयर के, दे हैव सर्टेन पैरामीटर्स। तो जो भी उन्होंने वो पैरामीटर्स डिवाइस करे हैं वो जनरल पब्लिक को शेयर नहीं करता है। एंड इसी चीज के लिए इनफैक्ट मैंने एक दिल्ली हाई कोर्ट में रिट पिटीशन भी फाइल करी है। अनमोल झा के एसएससी का नाम है, अनमोल झा वर्सेस सीपीआईओ। उसमें मैंने यही रिक्वेस्ट करी है कि व्हाई यू आर नॉट शोइंग द ट्रांसपेरेंसी। आप वो ऑडिट इंडिकेटर्स अगर आप शो करेंगे तो उससे अल्टीमेटली क्या होगा, उससे अल्टीमेटली वॉलेंटरी कंप्लायंसेस बढ़ेगी। बट डिपार्टमेंट का इसमें ये व्यू है कि नहीं, हम नहीं करेंगे बिकॉज इससे ये सरकमवेंट करेंगे प्रोसीजर को। इट माइट बी पॉसिबल कि से दे हैव अ ट्रांजेक्शन, इससे अगर कोई कैश डिपॉजिट है अबव 10 लाख रुपीज एंड एसएससी हैज नॉट फाइल्ड द रिटर्न, तो उन केस में वो 148 इश्यू कर देंगे। एंड इन केस वो ऐसी स्ट्रेटजीज दे तो उन केसेस में हम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट देर बिकम अ पॉसिबिलिटी टू सर्कमवेंट द प्रोसीजर। वी विल ओनली मेक कैश डिपॉजिट ऑफ 9,99,000 टू सर्कमवेंट 10 लाख रुपीज। एंड डिपार्टमेंट वो नहीं चाहता कि हम इस तरीके से सर्कमवेंट करें। लेकिन मेरा भी इसमें ये व्यू पॉइंट है कि आप जो भी स्ट्रेटजीज बनाते हैं, वी आर नॉट चैलेंजिंग दो स्ट्रेटजीज बिकॉज दैट इज कंप्लीटली अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। दो स्ट्रेटजीज कैन नॉट बी चैलेंज। बट द थिंग इज दैट इन केस the audit parameters are being provided not with the figures, simply say that in case high cash deposit has been happened and ITR has not been filed, so we will issue. Simply they have to mention high cash deposit. They don't need to mention the figures can be kept confidential, but the parameters need to be disclosed. और जब पैरामीटर्स डिस्क्लोज होते हैं उससे ओनली एंड ओनली वॉलेंटरी कंप्लायंसेस बढ़ती है। एंड इनफैक्ट ऑल द मेजर इकोनॉमीज डज दैट, चाहे यूएसए हो चाहे कनाडा हो, जो मेजर इकोनॉमी है वो अपने ऑडिट पैरामीटर पब्लिश करती है। इनफैक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद अपने ऑडिट पैरामीटर्स ये अपने कंपल्सरी स्क्रूटनी नोटिस फॉर 143(2) फॉर ओरिजिनल स्क्रूटनीज उनको वो पैरामीटर पब्लिश करता है, बट दे डू नॉट पब्लिश इट फॉर 148 केसेस। तो माइट बी पॉसिबल कि इन फ्यू इयर्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये ऑडिट पैरामीटर्स फर्निश करने लग जाए एंड उससे हमें और क्लैरिटी आए। एंड नॉट ओनली कि पैरामीटर्स फर्निश हो रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया कि ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेसिस पे होता है, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जब तक एसएससी के साथ में शेयर नहीं होता, वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया शुड बी शेयर्ड। इट माइट बी पॉसिबल कि जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया उन्होंने डिटरमाइन किया था, उन्होंने कहा था कि हाई कैश वैल्यू ट्रांजैक्शन, और जब असेसिंग ऑफिसर 148 का नोटिस भेजता है या शो कॉज नोटिस भेजता है 148A का, उसमें वो बैंक अकाउंट एंट्रीज के बारे में बात करे। तो जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा कि मेरा जो नोटिस है वो बिकॉज ऑफ विच क्राइटेरिया इन्होंने इशू किया है, तब तक लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। एंड जो 2021 का जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट था वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो एनीवेज इन फ्यूचर वी विल सी कि जिस तरीके से ये लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इवेंचुअली पैरामीटर्स भी फर्निश करे और उससे ओवरऑल हमारी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टैक्स प्रोफेशनल्स अपने क्लाइंट्स की बेटर तरीके से वॉलंटरी कंप्लायंसेस कर पाएंगे। अभी रिसेंटली परसों ऑन 8th जुलाई 2 days ago 8th जुलाई को एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया फॉर इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी कि इन केस कोई भी फॉरेन इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है जो कि ट्रांसपेरेंट मेथोडोलॉजी या फिर फ्री एक्सचेंज एग्रीमेंट में जो इंडिया ने बाकी कंट्रीज के साथ साइन करी हुई है, वो वाली इंफॉर्मेशन भी अब AIS
में आपके शो होगी। तो इससे अल्टीमेटली ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी एंड आपको पता लगेगा कि ये इंफॉर्मेशन हम अपनी आईटीआर में फिल कर ले, ताकि स्क्रूटनी या 148 के चांसेस जो है वो रिलेटिवली लिमिटेड रह जाए। तो दिस वाज अ वेरी इंसाइटफुल चेंज ऑन 8 जुलाई, जो अब हमें मोस्टली बाय नेक्स्ट ईयर रिफ्लेक्ट होगा क्लाइंट्स की आईटीआर्स में। तो देखिए, अब हम अगर आगे बढ़े तो 148 का जो नोटिस है, मैंने अभी आपको एक तरीका बताया कि वो कैसे डिटरमाइन होता है। इफेक्टिवली वो 5 उसके रीजंस हैं जब 148 इश्यू होता है। नंबर 1 रीजन मैंने आपको बताया कि कोई भी अगर इंफॉर्मेशन जो है वो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी से, जब वो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी से मूव अप होती है, मतलब उनके पास डेप्थ ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसमें वो फ्यू स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, और वो स्ट्रेटेजी जब उससे फिल्टर आउट होती है, उससे जितने लोग निकल जाते हैं, उससे जितने लोग एक्चुअली अटैच हो जाते हैं, उन लोगों को 148 की नोटिस आ जाते हैं। सेकंड है कि इन केस अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन है, जो ऑडिट ऑब्जेक्शन है जो उनके इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ने इशू किया है, तो उस केस में 148 नोटिस आ सकता है। बट एक चीज का इसमें ध्यान रखना है कि वो सिर्फ तभी आता है जब ऑडिट ऑब्जेक्शन ये शो करे दैट देयर इज सर्टेन प्रोसीजरल और लीगल एरर विच द असेसिंग ऑफिसर हैज कमिटेड। इन केस वो ऑडिट ऑब्जेक्शन आता है जिसमें कोई फैक्चुअल चेंज नहीं है एंड कोई लॉ का वायलेशन नहीं था एज पर द प्रोविजन व्हेन द असेसिंग ऑफिसर पास द ऑर्डर, तो उस केस में वो ऑडिट ऑब्जेक्शन वुड बी बैड इन लॉ, मीनिंग देयर बाय, जैसे कि अगर मैं प्रैक्टिकली केस बताऊं तो किस तरीके का केस आता है इसमें। अगर एक बोगस परचेज का मैटर है, एक एसएससी का बोगस परचेज बोला कि आपकी 40 लाख या 50 लाख रुपीस की आपने इस पार्टी से परचेज करी है, एंड ये परचेज हमें इंफॉर्मेशन फ्रॉम द जीएसटी डिपार्टमेंट रिसीव हुआ है, एंड दीज आर द पार्टी हुज जीएसटी रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसिल्ड। तो ये परचेज सप्लाई नहीं हुई है एंड आपकी बोगस परचेज है। अब बोगस परचेज का मैटर हुआ एंड इफेक्टिवली इन द ओरिजिनल स्क्रूटनी असेसिंग ऑफिसर ने सेल्स पे बोला कि आपकी सेल्स पे कोई क्वेश्चन नहीं उठाया, ओनली परचेज पे क्वेश्चन उठाया, तो उस पे ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज पे एडिशन करी से 25%। एंड उस केस में डिपार्टमेंट 148 इशू कर देता है ये बोल के कि नहीं, असेसिंग ऑफिसर ने 25% की एडिशन जो करी है वो गलत करी है। ऑडिट ऑब्जेक्शन में पता लगा कि 100% की एडिशन होनी चाहिए थी। तो क्या क्या ये केस, क्या ये केस 148 में फॉल लीगली करेगा? क्या असेसिंग ऑफिसर ने एट द टाइम ऑफ असेसमेंट कुछ लीगली रॉन्ग किया था, या ये दिस इज सिंपली अ मियर चेंज ऑफ ओपिनियन? अगर ये मियर चेंज ऑफ ओपिनियन है तो दिस इज टोटली इनवैलिड एज पर सेक्शन 148 एक्सप्लेनेशन। अब सेकंड चीज पे हम आ जाते हैं, वो है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है अंडर सेक्शन 19 सेक्शन 90 कैपिटल ए, मीनिंग देयर बाय अगर कोई फॉरेन जुरिस्डिक्शन से इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है, तो उस केस में आपको 148 आने के चांसेस है इन केस आपने सेम इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं रिफ्लेक्ट करी होगी इन योर आईटीआर। फोर्थ केस है, मैंने 3 केस बताया, पहला है रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी के बेसिस पे आ सकती है, दूसरा है कि अगर कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन है उस बेसिस पे आ सकती है, तीसरा है अगर कोई फॉरेन जुरिस्डिक्शन से उनको ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है उस केस में आ सकती है, चौथा है कि इन केस असेसिंग ऑफिसर ने एक ई वेरिफिकेशन स्कीम के थ्रू से इंफॉर्मेशन आई है 135 कैपिटल ए, उसके थ्रू आई है,
तो वो एक चौथी कंडीशन है जिसके बारे में हम अभी फर्दर डिस्कस करेंगे। और पांचवा केस है कि अगर असेसिंग ऑफिसर को कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आई है फ्रॉम द ट्राइब्यूनल ऑर्डर और एनी अदर कोर्ट ऑर्डर, तो उसके कॉन्सिक्वेंस में अगर 148 इशू करना हुआ, तो दैट इज another instances where 148 can be issued. So as of today, there are total 5 instances because of which 148 can be issued: risk management strategy, audit objection, information from foreign jurisdiction, e-verification scheme, and any information which is in consequence of tribunal and the court order. अब अब इसमें सबसे पहला ये क्वेश्चन आता है कि एज अ टैक्स प्रोफेशनल अगर आपके क्लाइंट्स को 148 आता है तो आपको उसमें क्या करना है, क्या आपको स्टेप्स लेने हैं। तो अब मैं थोड़ी प्रैक्टिकल चीजों पे आ रहा हूं। अभी तक थोड़े हम थ्योरेटिकल चीज करके हमने अंडरस्टैंडिंग थोड़ी गेन करी है, कि अब हम थोड़े प्रैक्टिकल इंस्टेंसेस पे आ रहे हैं। सबसे पहले तो कोई यहाँ पे अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिसके अभी रिसेंटली क्लाइंट को 148 आया है और वो डिस्कस करना चाहता है, तो दे कैन आस्क मी कि कोई किसी तरीके का कोई स्पेसिफिक केस है। इन केस दे वांट टू आस्क, दे कैन आस्क मी। कोई यहाँ पे ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिनके क्लाइंट को 148 आया है? मैं सुजीत अग्रहरी, सीए सुजीत अग्रहरी, जौनपुर से प्रैक्टिस करता हूँ। जी। तो ये मेरे क्लाइंट का एक जो आलू प्याज का बिजनेस करते हैं, वो कैश अकाउंट में जमा करते थे। ये केस है फाइनेंशियल ईयर 2021 का है। तो पहले उसमें 133 का नोटिस आया था कि आपने रिटर्न नहीं भरा है। मैंने फिर रिटर्न ऑडिट करके रिटर्न भर के उसको सबमिट कर दिया था उनके पास कि कंप्लायंस पूरा हो गया। उसके बाद 100 पिछले साल 148 का नोटिस इशू हो गया कि आप अपने बुक से किस आधार पे आपने जो है अपने ये बुक्स रिटर्न भरे, इसके बारे में अपना बताइए। तो अभी उसका ये प्रोसेस 148 का असेसमेंट चल रहा है। उसमें उन्होंने कस्टमर की डिटेल मांगे है, या कहाँ से किसको पैसा दिया, किससे पैसा लिया, वो सारी डिटेल। तो आपने उस टाइम पे आपके क्लाइंट ने रिटर्न भरी थी क्या? रिटर्न नहीं भरी थी, वो 133 के रिस्पॉन्ड में रिटर्न भरी थी, 133(6) में जब नोटिस आया था। 133(6) में रिटर्न नहीं सर भर सकते, 148 में रिटर्न भर सकते। नहीं, टाइम 133(6) था, अपडेटेड रिटर्न भर रहा था उस टाइम, समय था रिटर्न अच्छा, भरने का। अपडेटेड रिटर्न भरी है, ओके। अपडेटेड रिटर्न भर के हमने कि भाई हमारी ये रिटर्न नहीं भर पाए थे, तो अभी जो भी था टैक्स के ये साथ कौन रिटर्न सी भर ईयर का है सर? 20 असेसमेंट फाइनेंशियल ईयर 2021। अच्छा, 21-22 का है और ये आपको आया है पिछले साल मार्च पिछले साल 2025 जून में? 25 में, जून 25 में इसकी। जून 2025 में आया था। आपको पहले ए भी आया होगा, 148 ए भी आया होगा। हाँ, आया था वो। हम्म। ठीक है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। और किसी का कोई केस है, इनका कैश डिपॉजिट का मैटर है। इनका ये मैटर कैश डिपॉजिट का है। और अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कोई टैक्स प्रोफेशनल हो जो अपना शेयर करना चाहे, जिनको 148 की रीअसेसमेंट्स के प्रैक्टिकली नोटिस आए हुए हो उनके क्लाइंट्स के, कैश डिपॉजिट मैटर्स आ रहे हैं। ओके। तो मीनिंग देयर बाय कैश डिपॉजिट्स के ज्यादा ऐसे केसेस आ रहे हैं। ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो अच्छा, कैश डिपॉजिट के में 148 ये नहीं इशू हुआ। पंकज गर्ग जी, एक बारी आप पंकज गर्ग जी अगर आना चाहे तो ही कैन स्पीक। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, हाँ जी पंकज जी, आपके केस में 148 ए नहीं इशू और कैश डिपॉजिट का मैटर है। यस, 148 ए नहीं आया है सर, 56 लाख का कैश डिपॉजिट हुआ था। तो ई वेरिफिकेशन स्कीम के थ्रू आई है इंफॉर्मेशन? हाँ जी। कब आया है आपके पास नोटिस? ये नोटिस आया था सर नवंबर 2024 को। नवंबर 2024 में आपके पहली बारी नोटिस आया था 148 का डायरेक्टली? हाँ जी। ओ, काफी स्ट्रेंज है। यूजुअली जो कैश डिपॉजिट के मैटर्स होते हैं उसमें 148 ए होता ही होता है। सर एक्सेप्शन का यूज़ किया उन्होंने क्लोज डी का, कि इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है।
क्लॉज डी का कौन सा एक्सेप्शन है? 148A क्लोज डी में उन्होंने ये कि अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन आई है इसकी ईवीएस से अंडर सेक्शन 135A, हाँ, मैं तो वही कह रहा हूँ, ई वेरिफिकेशन स्कीम से आपको इन्फॉर्मेशन आई है और हाँ उसके जी, बेसिस पे आपका डायरेक्टली उन्होंने 148 खोल दिया है। हाँ ठीक। जी। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो आपने उसके अभी जवाब दे, तो अब तो खत्म होने वाला होगा, वो तो खत्म हो गया होगा अब नहीं तो। सर, एक्चुअल में क्या हुआ, हमें अप्रोच किया क्लाइंट ने मार्च 2025 के बाद, जब उसका 147 हो गया, ओके। तो अभी फर्स्ट रेमेडी अपील देख की। रहे हैं। अच्छा, तो अभी तक आपने अपील फाइल नहीं करी उसके लिए? अपील के लिए उसके पास जो है वो बोल रहा है कि मेरे को जल्दी करना है, कैंसर पेशेंट है। हाँ तो हाँ। वो अपील में ना जाते हुए वो गया है हाई कोर्ट में। अच्छा। तो उसने इसी चीज़ को चैलेंज किया है कि क्या नाम लेते हैं, 148A नोटिस इशू नहीं हुआ है। तो डिपार्टमेंट ने अभी 9 जुलाई थी हाई कोर्ट में सेकंड हियरिंग पे, तो वहाँ पे जो आर्गुमेंट हुआ, उन्होंने अपना एसओपी सबमिट किया कि हमें 148A का कोई रिक्वायरमेंट नहीं था इस केस में। हम्म। तो अभी हाई कोर्ट से फिर उनको नोटिस इशू है डिपार्टमेंट को कि आप अपनी रीअसेसमेंट रिपोर्ट सारे सबमिट कीजिए नेक्स्ट डेट कौन से हाई कोर्ट में है ये आपका मैटर? को। ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। पंजाब एंड हरियाणा। हाँ हाँ। नहीं, ठीक है। जी। आपका प्रोसीजर जो है वो ठीक है। मैं आगे बताऊंगा 148 135 कैपिटल ए के बारे में कि किस तरीके से ई वेरिफिकेशन स्कीम्स जो है ना इसका श्योर, वर्क होता है। श्योर सर। हाँ, तो अभी अगर सबसे पहले अगर किसी को 148 की नोटिस आता है तो एज अ टैक्स पेयर को एज अ प्रोफेशनल हमें टैक्स पेयर की 148 की रिटर्न फाइल करनी, एक्सक्यूज मी, वो कंपलसरी है। मीनिंग देयर बाय, पहले लॉ में 2021 से पहले अगर कोई लॉ 148 भेजता था तो काफी बारी असेसी क्या करते थे, ओनली ये राइट कर देते थे कि ओरिजिनल रिटर्न वुड बी ट्रीटेड एज अ रिटर्न फाइल अंडर 148 और उसको वो एज अ सफिशिएंट कंप्लाइंस मान लेते थे। लेकिन अब नए एक्ट में ओनली प्रोवाइडिंग स्टेटमेंट की ओरिजिनल रिटर्न इज टू बी ट्रीटेड एज 148 रिटर्न won't be treated as a sufficient compliance because अब नए एक्ट में 148 में स्पेसिफिकली मेंशन है कि द रिटर्न हैज टू बी प्रोवाइडेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। तो लॉ की वर्डिंग्स नए एक्ट में चेंज हो गई है। तो आपको कोई भी 148 की नोटिस आए तो आपको सबसे पहले उसको रिटर्न उसमें सबमिट करनी है एज पर 148। सेकेंड चीज ये है कि इन केस 148 में किसी ने किसी को नोटिस आया है एंड उस केस में आपने अपनी इनकम एडिशनल डिक्लेयर कर दी है तो इट डज नॉट मीन कि अब आप पे पेनल्टी नहीं लगेगी, ये असेसमेंट खत्म हो जाएगा। अगर आपने 148 में रिटर्न फाइल करी है और उसमें आपने इंक्लूड कर दिया है एडिशनल इनकम तो उसके बाद भी असेसिंग ऑफिसर कैन लेवी पेनल्टी अंडर 270। बट ओनली डिफरेंस इज कि अब जो पेनल्टी लेवी है वो मिस रिपोर्टिंग में नहीं आएगी, 200% में नहीं आएगी, वो 50% में आ जाएगी। तो आपकी जो पहले पेनल्टी थी, जो पहले ज्यादा थी, वो अब इफेक्टिवली कम हो सकती है इन केस एनी पर्सन डिक्लेयर्स द इनकम इन 148 रिटर्न एंड अगस्त 2024 के बाद, अगस्त 2024 के बाद, इनफैक्ट आज की डेट में नोटिस अंडर 148A इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस द रीअसेसमेंट हैव बीन ओपन्ड वाया ई वेरिफिकेशन स्कीम। तो जैसे कि पंकज जी का भी केस था कि अगर डिपार्टमेंट ये कहता है कि मैंने ई वेरिफिकेशन स्कीम में केस रीओपन करा है तो फिर मेरे को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड अंडर 148A देने की जरूरत नहीं है। हम इसके बारे में थोड़ा ई वेरिफिकेशन स्कीम के बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि क्या है ये एक्चुअल में। अब एक चीज आती है कि कौन कौन सी, जब भी आपको 148 का नोटिस आया है
तो उसके बाद एज अ टैक्स प्रोफेशनल जब असेसमेंट हो रही है तो आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन या असेसिंग ऑफिसर से मांगनी है, वो इंक्वायरी बहुत जरूरी है। या तो आप वाया ड्यूरिंग द असेसमेंट मांगेंगे, या फिर आप आरटीआई फाइल करेंगे। आपको राइट टू इंफॉर्मेशन असेसिंग ऑफिसर को फाइल करनी होगी। एंड उससे आप क्या क्या चीजें मांगेंगे? सबसे पहले तो आप हायर अथॉरिटी का अप्रूवल मांगेंगे जिसके बेसिस पे आपने 148 किया है। सेकंड चीज, आपको वो सारे के सारे इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल एंड एडवर्स मटेरियल चाहिए होगा, चाहे कोई स्टेटमेंट हो विच इज being relied upon by the assessing officer या which is in possession of the assessing officer because of which my 148 case has been reopened। तो आपको वो सारा मटेरियल या इंफॉर्मेशन वो मांगनी है। इन केस असेसिंग ऑफिसर वो नहीं देता तो आपका केस बिकम्स मच मोर स्ट्रोंगर। अगर वो नहीं, आपको बस एक बार ही मांगनी है। अगर उसने नहीं दिया तो आगे चल के जब वो मैटर ट्राइब्यूनल में जाएगा तो इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड रिलायड अपॉन हो जाती है असेसमेंट में कि वी आस्क्ड फॉर द इनकैरिनेटिंग एंड एडवर्स मटेरियल बट द असेसिंग ऑफिसर डिड नॉट प्रोवाइड इट। आपको उसके पीछे नहीं पड़ना है कि नहीं नहीं हमें दो हमें दो हमें दो। आपको बस एक सटल वे में उसको बता देना है कि हमें ये इंफॉर्मेशन आप दे दीजिए। अगर वो दे देता है तो वेल एंड गुड, आप उस पर रिलायड अपॉन करके अपने फर्दर रिप्लाईज बना सकते हैं। बट अगर वो नहीं देता है तो ये और भी अच्छी बात है, बिकॉज इट विल मेक देयर केस मच वीकर। सेकेंड थिंग, इसमें एज अ टैक्स प्रोफेशनल हमें ये नहीं सोच के रखना है कि ओनली असेसिंग ऑफिसर कैन इंक्वायर इंफॉर्मेशन। वी कैन ऑल्सो एज अ टैक्स प्रोफेशनल assessing assessee himself can inquire information from the assessing officer। तो 151 अप्रूवल या एनी अदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इनसाइड पोर्टल वो आपको इंक्वायर करनी है। जैसे कि पंकज जी के केस में भी यही हो रहा है कि अब वो हाई कोर्ट डिपार्टमेंट से रिकॉर्ड्स मंगवा रहे हैं कि आप अपने रिकॉर्ड्स लेके आइए। वो सारे रिकॉर्ड्स असेसमेंट के टाइम पर ही आपको मांग लेने चाहिए। अगर वो नहीं देते तो वो ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई फ्रस्ट्रेट होने की बात नहीं है। सेकंड चीज अगर असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास करते हुए कोई भी ऐसी स्टेटमेंट है जो एक थर्ड पार्टी स्टेटमेंट है जो उसने रिलायड अपॉन करी है वाइल ड्राफ्टिंग हिज असेसमेंट ऑर्डर, रीअसेसमेंट ऑर्डर अंडर 147, अगर रीअसेसमेंट ऑर्डर अंडर 147 को ड्राफ्टिंग करते हुए उसने रिलायड अपॉन करी है, देन या उससे पहले उसने रिलायड अपॉन करी है 148 ए डी के ऑर्डर में या 148 ए थ्री के ऑर्डर में रिलायड अपॉन करी है, देन ऑलवेज इंक्वायर फॉर क्रॉस वेरिफिकेशन। आपको क्रॉस वेरिफिकेशन करना है उस पर्सन से, आपको इंक्वायरी मेड करनी है असेसिंग ऑफिसर से। प्लीज आप जो जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एंड ट्रिब्यूनल लेवल पे इससे बहुत ह्यूज इंपैक्ट पड़ता है। अगर आपने क्रॉस वेरिफिकेशन मांगी होगी तो आपके ट्राइब्यूनल मेंबर्स उन ऑर्डर्स को क्वैश कर देंगे बिकॉज देयर इज अ सीरियस वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस बिकॉज ऑफ क्रॉस वेरिफिकेशन विच इज नॉट प्रोवाइडेड। एंड 99% केसेस में आपको क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं प्रोवाइड करी जाएगी बाय द असेसिंग ऑफिसर। आपको क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं प्रोवाइड करी जाएगी, लेकिन यू हैव टू आस्क फॉर क्रॉस वेरिफिकेशन। और हमें बार बार ही नहीं उनसे रिक्वेस्ट करनी क्रॉस वेरिफिकेशन दो क्रॉस वेरिफिकेशन दो। इवन इफ पूरे ड्यूरिंग द होल रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स एक बार ही रिक्वेस्ट कर ली कि क्रॉस वेरिफिकेशन दो तो फिर इट इज सफिशिएंट। अब थर्ड चीज, एट द फाइनल शो कॉज नोटिस, जब एक फाइनल शो कॉज नोटिस होता है 147 से पहले, तो उसमें माइट बी पॉसिबल कि असेसिंग ऑफिसर माइट राइट कि ही हैज रिलायड अपॉन द फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट या ही हैज रिलायड अपॉन एनी थर्ड पार्टी बाय इशूइंग 133(6) टू देम, या और कोई एजेंसी की रिपोर्ट है। तो वो वाली सारी की सारी रिपोर्टिंग आपको एट द टाइम ऑफ शो कॉज नोटिस टू 147 इंक्वायर करनी है।
वो सारी की सारा डॉक्यूमेंट एंड मटेरियल आपके पास वो होना चाहिए, जिससे कि आप बेटर रिप्लाई बना पाएंगे। एंड इन केस वो नहीं प्रोवाइड करता, देन इट मेक्स योर केस मच मोर स्ट्रोंगर। तो आपको सारी फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स इन केस विच हैज बीन रिलायड अपॉन, कोई टेक्निकल यूनिट की रिपोर्ट्स है या कोई भी ऐसा मटेरियल दिख रहा है बाय रीडिंग द शो कॉज नोटिस कि दिस हैज बीन रिलायड अपॉन, तो वो आपको डेफिनेटली उससे इंक्वायर करनी है, उसकी फुल कॉपी, फुल डिस्क्लोजर। तो दिस इज एप्लीकेबल टू द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स ऑल्सो। चाहे असेसमेंट हो चाहे रीअसेसमेंट हो, देर इज ऑलवेज टू वे कम्युनिकेशन दैट हैज टू हैपन, नॉट अ सिंगल ट्रैफिक कम्युनिकेशन कि असेसिंग ऑफिसर ने आपको 142(1) की इंक्वायरी शीट दे दी एंड आप उसकी बस कंप्लायंस करते रहे। आपके पास भी इक्वल राइट है टू डिमांड एनी एडवर्स और इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल। तो मैंने आपको तीन चीजें बताई जो आपको इंक्वायर करना है। सबसे पहले आपको अप्रूव रीअसेसमेंट के केस में 151 की अप्रूवल इंक्वायर करनी है। आपको इंफॉर्मेशन रिक्वायर करनी है फ्रॉम इनसाइड पोर्टल। आपको अगर ड्यूरिंग द असेसमेंट कोई क्रॉस वेरिफिकेशन दिखता है तो वो आपको रिक्वेस्ट करना है। एंड अगर कोई एडवर्स रिपोर्ट है, फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट है, थर्ड पार्टी रिपोर्ट है, तो वो वाली सारी रिपोर्ट्स आपको इंक्वायर करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ये ड्यूरिंग द रीअसेसमेंट ये बता रहे हैं कि आपकी वेयर अबाउट्स हमने देखे, हमने फिजिकल वेरिफिकेशन यूनिट को बोला कि आपके इस एड्रेस पे जाके सर्च करके आइए, तो वो जब यूनिट वेरिफिकेशन रिपोर्ट आती है तो वो हम मांगते नहीं है। मैंने अपने केस में उनसे वेरिफिकेशन रिपोर्ट सारी मांगी कि मेरे को दो। बाद में मैंने देखा वो जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट में पिन नंबर गलत डाला हुआ है, और बिकॉज ऑफ दैट उसका होल कंक्लूजन रॉन्ग हो गया एंड ट्राइब्यूनल क्वाश दैट ऑर्डर कि आपका जो बेसिस था कि फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट यहाँ पे नॉन एग्जिस्टेंस है, तो ये सारी चीजें वो बेसिस ही रॉन्ग है, जो एक फाउंडेशनल बेसिस था वो रॉन्ग है, बिकॉज इट वॉज देयर ऑन द रॉन्ग वेरिफिकेशन रिपोर्ट। या 133(6) इशू करा था ये बोल के कि हम एसएससी की इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं किसी थर्ड पार्टी से। जब हमने 133(6) की कॉपीज मंगाई कि आप हमें 133(6) की कॉपीज दीजिए, तो देखा कि हमारे एसएससी का पैन नंबर ही उसमें गलत था। तो जब पैन नंबर गलत था तो एक तरीके से आपने नॉन एस पर्सन के लिए 133(6) इशू किया है एंड ट्राइब्यूनल क्वाशेस दोस ऑर्डर्स कि ये 133(6) गलत है। बट इशू तब आता है कि जब हम उसको रेज ही नहीं करते, हमें यही नहीं पता कि 133(6) जो डिपार्टमेंट ने इशू करा है वो वैलिड है कि नहीं है, जो दूसरी एजेंसी की रिपोर्ट है वो वैलिड है कि नहीं है। जब तक हमारे पास वो कॉपी ही अवेलेबल नहीं होगी, देन हाउ कैन वी रेज इट बिफोर द आईटीएटी और द सीआईटी अपील्स। तो कोई भी रिपोर्ट या वेरिफिकेशन है वो आपको इंक्वायर करनी है फ्रॉम द असेसिंग ऑफिसर, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक फाइनेंस एक्ट 2026 में एक अमेंडमेंट आई जिसमें जो अप्रूवल्स है उसकी जुरिस्डिक्शन को काफी डाइल्यूट किया, मीनिंग देयर बाय सेक्शन 292(b)(c) इंट्रोड्यूस किया। एंड 292(b)(c) में ये बोला है कि अगर आपने अप्रूवल ली है किसी भी तरीके की इनकम टैक्स अथॉरिटी से, तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सुपरविजरी नेचर की अप्रूवल मानी जाएगी। एंड वो अप्रूवल वोंट बी जस्टिसिएबल, मीनिंग देयर बाय जस्टिसिएबल का क्या मतलब है कि आप उस अप्रूवल को ये नहीं चैलेंज नहीं कर पाएंगे इन कोर्ट्स और इन ट्राइब्यूनल्स कि दिस इज रॉन्ग अप्रूवल बिकॉज ऑफ मैकेनिकल एप्लीकेशन ऑफ माइंड। बट आज की डेट में भी आफ्टर दिस अमेंडमेंट विच हैज बीन मेड इन फाइनेंस एक्ट 2026 with retrospective effect from फाइनेंस एक्ट 2021, आज की डेट में भी अगर कोई अथॉरिटी ऐसी है जिसने अप्रूवल ली ही नहीं, कोई अगर ऐसी अथॉरिटी है जिसने अप्रूवल ही नहीं ली, देन दैट असेसमेंट और रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स वुड बी क्वैश्ड। तो अगर जैसे यहाँ पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिन्होंने बोला कि मेरा एक्सप्लेनेशन 2 और D के
बेसिस पे मेरा केस खुला है, तो उनके लिए अप्रूवल 148 बी की अप्रूवल लेनी जरूरी है डिपार्टमेंट को। और 148 बी की अप्रूवल, कैपिटल बी, जो पहले वाले एक्ट में 153 डी की अप्रूवल थी, वो वाली अप्रूवल जो है अगर नहीं लेगा तो उस केस में पूरा रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स जो है वो क्वैश हो जाएगी, एंड यू हैव टू इंक्वायर फॉर दैट 148 बी अप्रूवल। 148 बी अप्रूवल रिक्वायर करना कंपलसरी है, अदरवाइज रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स क्वैश नहीं हो पाएगी। या फिर अगर अप्रूवल नहीं ली, या फिर अगर अप्रूवल किसी रॉन्ग अथॉरिटी से ले ली, जिस ऑफिसर से लेनी थी उस ऑफिसर से नहीं ली, जो स्पेसिफाइड ऑफिसर अंडर 151 है, एंड एनी अदर ऑफिसर से ले ली, तो उस केस में 151 अप्रूवल या एनी अदर अप्रूवल वो इनवैलिड मानी जाएगी, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अगर किसी और असेसिंग से भी, ऑफिसर से भी ले ली, तो दैट इज बैड इन लॉ। तो ये एक सेकंड चीज हो गई कि अप्रूवल होनी चाहिए, एंड सेकंड करेक्ट अथॉरिटी से होनी चाहिए, एंड दिस इज एप्लीकेबल इवन इन केस ऑफ, इवन आफ्टर फाइनेंस एक्ट 2026। अब हम आ जाते हैं कि क्या ई वेरिफिकेशन स्कीम्स है जो जो डिपार्टमेंट ने अब इनिशिएट करा है। देखिए, ई वेरिफिकेशन स्कीम का मतलब क्या होता है, ये प्राइमरली लेजिस्लेचर लेके आया था इन फाइनेंस एक्ट 2020, और इसको इंट्रोड्यूस करा बाय सीबीडीटी बाय इंट्रोड्यूसिंग एन ई वेरिफिकेशन स्कीम विच वाज डेटेड 13/12/2021 में, मतलब 13 दिसंबर 2021 को ये स्कीम एक्चुअली में लॉन्च करी गई। अब ये स्कीम कहती क्या है, सबसे पहला ये क्वेश्चन आता है, स्कीम कहती क्या है। ये स्कीम ये कहती है कि जो भी ई वेरिफिकेशन स्कीम है, अगर कोई इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करता है डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में कौन कौन है, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम, जो इन्वेस्टिगेशन का भी हो सकता है या फिर क्रिमिनल अथॉरिटी का भी हो सकता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम, या फिर कोई और सीआईटी जो टीडीएस विंग का हो, या सीआईटी जो सीपीसी का हो, या एनी अदर पर्सन फ्रॉम द डिपार्टमेंट, वो पर्सन के पास अगर कोई इंफॉर्मेशन आती है तो वो इंफॉर्मेशन को लेके उसकी इंस्पेक्शन करनी है। और उसकी इंस्पेक्शन कैसे करेगा, अगर वो कंपनी से है तो उसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आरओसी से उसकी बुक्स निकालनी है और उससे इंस्पेक्शन करनी है, उसको इंक्वायरी मेड करनी है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आई है, आप ये चेक कर सकते हैं। अब वो इंक्वायरी करेगा, लेकिन इंक्वायरी करने से पहले वो इंफॉर्मेशन एक ई वेरिफिकेशन स्कीम में जाएगी, मीनिंग देयर बाय सीआईटी ई वेरिफिकेशन के पास जाएगी, जो वो इंफॉर्मेशन प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी से फ्लोट करेगा। जब वो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी में उसे फ्लोट करेगा, मतलब वो वाली इंफॉर्मेशन फिर से वो उस डर्थ ऑफ इंफॉर्मेशन में डालेगा। ये एक इंफॉर्मेशन है, ये डर्थ ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसमें वो उसने डाली, और ये डालने के बाद उनकी अलग एक स्ट्रेटेजी है जिसके बेसिस पे वो डिटरमाइन करते हैं कि क्या इसमें लो रिस्क आना है या फिर हाई रिस्क है। अगर इसमें लो रिस्क आना है तो फिर डिपार्टमेंट सीआईटी ई वेरिफिकेशन का पर्सन अपने आप एक क्लोजर रिपोर्ट फॉर्म कर देगा, और अगर इसमें हाई रिस्क है तो उस केस में वो जो सीआईटी ई वेरिफिकेशन के पास इंफॉर्मेशन है वो अगेन डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स के पास जाएगी, और वो डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स के पास जाने के बाद वो 133(6) इशू करेगा टू द एसएससी, और वो कंप्लायंस पोर्टल में आएगा टू द एसएससी, एंड उसका एसएमएस भी कंपल्सरली सेंड होगा। दिस इज अंडर द ई वेरिफिकेशन स्कीम। उसमें लिखा है कि कंप्लायंस पोर्टल में एक 133(6) इशू होगा इन केस सीआईटी वेरिफिकेशन जो है वो उस इंफॉर्मेशन को आरसीएम मैट्रिक्स में घुमा के ये डिटरमाइन करती है कि दिस इज अ रिस्की इंफॉर्मेशन। अब ये रिस्की है कि नहीं है, या इंफॉर्मेशन जेन्युइन है कि नहीं है, ये सारी जो चीजें हैं ये अभी भी बहुत ग्रे एरिया है। डिपार्टमेंट ने प्रोसीजर को ट्रांसपेरेंट मेथोडोलॉजी से नहीं ले जा रखा है।
ये सारा ग्रे एरिया बैकएंड प्रोसीजर्स बना रखे हैं जो एक्चुअली में फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. इट बिकम वेरी डिफिकल्ट, बट इट कुड बी चैलेंज बिफोर द हाई कोर्ट कि ये जो ई वेरिफिकेशन स्कीम में इंफॉर्मेशन आई है, ये इंफॉर्मेशन एक रॉन्ग इंफॉर्मेशन है. और जब 133(6) इशू करता है डिपार्टमेंट, उसके बाद फिर से वो उस इंफॉर्मेशन को लेने के बाद या तो एसएससी उसमें 133(6) की सारी इंफॉर्मेशन मेंशन करेगा, अपनी एक्सप्लेनेशन मेंशन करेगा, या फिर वो अपडेटेड रिटर्न भरेगा. और जब वो वाली रिटर्न भरेगा, उसके बाद सीआईटी ई वेरिफिकेशन जो है वो उस इंफॉर्मेशन को अगेन रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी में फ्लो करेंगे. और जब वो फ्लो करेगा तो एक प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन रिपोर्ट बनेगी. वो प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन रिपोर्ट जिसको हम कहते हैं पीवीआर, पीवीआर जो रिपोर्ट बनेगी वो फिर से इनकम टैक्स जो ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी होगी उससे मैच होगी. तो मैं फिर से बताता हूं आपको, एक ई वेरिफिकेशन स्कीम है जिसमें 4 अथॉरिटीज को इंफॉर्मेशन रिसीव होगी. जब वो 4 अथॉरिटीज को इंफॉर्मेशन रिसीव होगी तो फिर वो ई वेरिफिकेशन सीआईटी पोर्टल को देंगे. वो सीआईटी वेरिफिकेशन पोर्टल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के थ्रू उसको फ्लो करे. अगर वो हाई रिस्क आती है तो उस केस में डिपार्टमेंट 133(6) इशू करता है एसएससी को. और 133(6) इशू करता है, उसके बाद जो उसका जवाब आता है, उसकी एक्सप्लेनेशन आती है, उसको वो फिर से वेरिफिकेशन करता है फ्रॉम द ई वेरिफिकेशन स्कीम जो उसको इंफॉर्मेशन आई है. और उसके बाद वो एक प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन रिपोर्ट बनाता है जिसको कहते हैं पीवीआर. और वो पीवीआर जो बनी है वो अगेन वेरीफाई होती है विद योर रिटर्न ऑफ इनकम, ओरिजिनल रिटर्न ऑफ इनकम जो फाइल करी हुई है. अगर वो ओरिजिनल रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने के बाद एक और टर्मिनोलॉजी क्रिएट होती है जिसको कहते हैं वैल्यू एट रिस्क, जिसको VAR कहते हैं, वैल्यू एट रिस्क. वैल्यू एट रिस्क वो वेरिफिकेशन करने के बाद, आईटीआर से मैच करने के बाद अगर ज्यादा आती है, उसमें आता है हाई रिस्क या लो रिस्क. अगर लो रिस्क है तो क्लोजर प्रोसीडिंग्स होगा. अगर वो हाई रिस्क है तो उस केसेस में वो इंफॉर्मेशन जो है वो जाओ या फाओ को दी जाती है. तो मीनिंग देयर बाय कि जो भी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज है वो सारी की सारी बड़ी इंपॉर्टेंट है. और वो इंफॉर्मेशन जो है वो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज में गो थ्रू होने के बाद, 133(6) के रिप्लाई आने के बाद, उसको वेरीफाई करने के बाद, पीवीआर बनने के बाद, पीवीआर रिटर्न से मैच होने के बाद VAR बनेगा. और वो सारी चीजें होने के बाद अगर हाई रिस्क होगी तो डायरेक्टली 148 आ जाएगा. अब ये इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर लगता है ई वेरिफिकेशन स्कीम का, लेकिन ज्यादातर जो मैंने इसमें नोटिसेस देखे हैं वो बहुत सिंपल तरीके के नोटिसेस आते हैं. सिंपल कैसे आते हैं ये वेरिफिकेशन स्कीम के नोटिसेस? प्राइमरली वो नोटिसेस आते हैं कि जहां पे सर्टेन मिसमैचेस हो रहे हैं, मीनिंग देयर बाय उनके पास इंफॉर्मेशन आई है कि आपने प्रॉपर्टी जो है वो सोल्ड आउट करी है से 10 करोड़ की. उनके पास इंफॉर्मेशन आई और वो इंफॉर्मेशन देखा रिटर्न में नहीं, वो उन्होंने रिफ्लेक्ट करा हुआ है. और अल्टीमेटली वो उन्होंने रिफ्लेक्ट किया हुआ है अगले साल या पिछले साल, 1 साल बाद उन्होंने उस पर टैक्स पे किया हुआ है, उसको रिफ्लेक्शन दिया हुआ है. और बिकॉज ऑफ रॉन्ग इंफॉर्मेशन इशूड बाय द सब रजिस्ट्रार, ये यूजुअली तब हो जाता है जब मार्च के महीने में प्रॉपर्टी सेल हो रही होती है. एंड अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ दैट टैक्स डिमांड, टैक्स का नोटिस आता है. बट ऑल्दो दैट टैक्स नोटिस इन लॉ इज नॉट वैलिड, बिकॉज नेक्स्ट ईयर अगर सारी चीजें कंप्लाइंसेस हो गई है तो रीअसेसमेंट नोटिस कैन नॉट बी इनिशिएटेड बिकॉज ऑफ द टाइमिंग डिफरेंसेस. Just because timing differences है, reassessment notices cannot be issued. It has to be issued when there is an escapement, actual escapement of income, substantive escapement of income. When it has happened, only then reassessment notices could be issued. But अभी भी बहुत ज्यादा ग्रे एरिया I would say in respect of e-verification scheme. डिपार्टमेंट नहीं इशू करता है ई-वेरिफिकेशन स्कीम्स की रिपोर्ट
डिपार्टमेंट नहीं इश्यू करता है वैल्यू एट रिस्क की रिपोर्ट, डिपार्टमेंट नहीं इश्यू करता है प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स, एंड दीज आर ऑल वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस। एंड आपको कोई भी अगर ई वेरिफिकेशन का नोटिस आता है तो आपको जरूर प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन रिपोर्ट मांगनी है, वैल्यू एट रिस्क मांगना है, या जो भी बैकएंड रिपोर्ट्स है विच इज बीइंग रिलाइड अपॉन वो आपको मांगना है। लेकिन आज की डेट में भी मैं आई वुड से कि बहुत ज्यादा ग्रे एरिया है इन रिस्पेक्ट ऑफ ई वेरिफिकेशन स्कीम, बिकॉज कोई प्रॉपर चैनल या स्केड्यूल नहीं है जिससे ये वेरीफाई हो सके कि ये इंफॉर्मेशन डायरेक्टली हैज कम फ्रॉम द इनसाइड पोर्टल, और ये वाली इंफॉर्मेशन जो है वो एक रिस्क मैनेजमेंट, वो एक ई वेरिफिकेशन मॉड्यूल के थ्रू आई है। देयर इज हाई डाउट with respect to this proposition that this information should come via e-verification scheme, or this information is come directly from the inside portal of the assessing officer। अब ई वेरिफिकेशन स्कीम के कुछ एफएक्यूज भी है जो ये मैंडेट करता है कि इन केस ई वेरिफिकेशन स्कीम हो रही है तो आपको एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप अपने रिटर्न अपडेट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 139(8)A। ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, क्लाइंट को मिलेगी अंडर इफ द रीअसेसमेंट नोटिस हैज बीन इनिशिएटेड बिकॉज ऑफ ई वेरिफिकेशन स्कीम। सेकेंड थिंग, प्रोवाइजो ये बोलता है टू 148A कि 148A की नहीं रिक्वायरमेंट है, रीजन बीइंग कि ई वेरिफिकेशन स्कीम में ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स वो इंफॉर्मेशन फ्लो हो गई है, एंड जब इतनी मल्टीपल टाइम्स इंफॉर्मेशन फ्लो हो चुकी है, रीचेक हो चुकी है, देन हम 148A जो अपॉर्चुनिटी है उसको देने की जरूरत नहीं है। दिस इज अंडर द लॉ विच इज बीइंग रिटन। एंड थर्ड ये है कि अगर आपने ई वेरिफिकेशन स्कीम के थ्रू 148 का नोटिस इशू किया है तो बिफोर द इशुएंस ऑफ नोटिस आपको स्पेसिफाइड एंड हायर अथॉरिटी से अप्रूवल लेनी है। तो दिस इज द थर्ड इशू विच इज देयर। अब ई वेरिफिकेशन स्कीम वाले जो मैटर्स होते हैं इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो कि बेनाफर पटेल जी की जजमेंट है इन बॉम्बे हाई कोर्ट। ये वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट इन ई वेरिफिकेशन स्कीम। इसका मैंने WPC नंबर लिखा हुआ है, रिट पिटिशन नंबर 1026 ऑफ 2024। ये मैंने मेंशन किया है। इसमें ये बोलता है कि असेसिंग ऑफिसर को बिफोर इशूइंग 148 रिटर्न अगर उसको ई वेरिफिकेशन स्कीम के थ्रू इंफॉर्मेशन आ रही है तो नॉट ओनली द ई वेरिफिकेशन स्कीम की जो प्रोसीजर्स है वो फॉलो करना है, असेसिंग ऑफिसर को भी ई वेरिफिकेशन स्कीम से जो इंफॉर्मेशन आई है वो बिफोर इशूइंग द 148 उसको वो लाइव लिंक उसका फॉर्मेशन करना है, उसको भी रीचेक करना है। मीनिंग देयर बाय कि अगर ई वेरिफिकेशन स्कीम से कोई इंफॉर्मेशन आ रही है और वो असेसिंग ऑफिसर ने नहीं रीचेक करा तो उस केस में 148 का नोटिस क्वैश हो जाएगा, because it is compulsory for the assessing officer to verify the veracity of the information which is being received। अब जैसे फॉर एग्जांपल सर ने बताया कि केस है कि 26 लाख रुपए का कैश डिपॉजिट हुआ है। अब अगर 56 लाख रुपए का कैश डिपॉजिट हुआ है, अब अगर 56 लाख रुपए का कैश डिपॉजिट हुआ है और एक्चुअल जब हम रिपोर्टिंग देखते हैं तो वो कैश डिपॉजिट उतना नहीं फाउंड होता, तो इसका मतलब जो ई वेरिफिकेशन स्कीम है वो नहीं प्रॉपरली फॉलो करी गई है। जब ई वेरिफिकेशन स्कीम प्रॉपरली फॉलो नहीं करी गई है एंड एओ ने भी नहीं चेक किया बिफोर इशूइंग 148 नोटिस, एओ ने भी उसको चेक नहीं किया, तो उन दैट केस दैट 148 नोटिस वुड बी लाइबल टू गेट क्वैश्ड, एज सिंपल एज दैट, बिकॉज ऑफ बिनाफर पटेल। बिकॉज आपको एक तो 148A की आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, और अगर वो दी भी गई है आपको नहीं दी गई, और अगर नहीं भी दी गई और आपने उसके बाद भी रॉन्ग और एनी टाइप ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन
इशू कर दी है, बेसिस बनाया है फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग 148 नोटिस, देन दैट 148 नोटिस बिकम बैड इन लॉ। अब आपको एज अ टैक्स प्रोफेशनल आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है व्हेन नोटिस अंडर 148 इज बीइंग इशूड। क्या क्या प्रोसीजरल ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं या जुरिसडिक्शनल डिफेक्ट्स है जो असेसिंग ऑफिसर इनकर करता है। सबसे पहले तो इन केस जो फाइनेंस एक्ट 2021 से लेके 2024 तक, सितंबर 2024 तक के जो फाइनेंस एक्ट है, उस फाइनेंस एक्ट में अगर शो कॉज नोटिस इशू करा है 148 ए बी का, अगर 148 ए बी का शो कॉज नोटिस इशू करा है तो उस केस में उसकी मिनिमम टाइमलाइन शुड बी 7 days। ये एज पर लॉ मैंडेटरी है। 148 शो कॉज नोटिस कैन नॉट बी लेस देन 7 days। अब ये जो 7 days है, इस 7 days में आप जो डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस है उसको एक्सक्लूड कर देंगे। उसके बाद आपको 7 days काउंट करने हैं कि आपको प्रॉपर 7 days मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। डेट ऑफ नोटिस आपका 148 ए बी का एक्सक्लूड होगा एंड देन 7 days काउंट होंगे। आपको मिनिमम उतनी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एंड दीज आर द प्रोसीजरल डिफेक्ट दैट कैन क्वैश योर 148 नोटिस बिकॉज 148 ए बी विल बिकम इनवैलिडेटेड। सेकेंड इशू ये है कि इन केस आपका 148 ए बी या 148 ए वन या 148 नोटिस दो दैट हैज बीन इशूड बाय अ नॉन टेरिटोरियल जुरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर, या फिर पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन रॉन्ग अगर असेसिंग ऑफिसर की थी जिसने 148 इशू कर दिया, तो उस केस में जो 148 का नोटिस है, जो रीअसेसमेंट प्रोसीजर का नोटिस है, दैट विल बी बिकम इनवैलिडेटेड बिकॉज इट हैज नॉट बीन इशूड बाय द प्रॉपर ऑफिसर, प्रॉपर असेसिंग ऑफिसर। थर्ड चीज है कि इन केस जो सैंक्शन अथॉरिटी है वो इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट अथॉरिटी ने आपको नोटिस सैंक्शन कर दिया है, तो इन दैट केस आपका 148 क्वैश हो जाएगा। जरूर आप सब लोगों को 151 या जो भी हायर अथॉरिटी की अप्रूवल है वो डेफिनेटली लेनी है। उसके बाद अगर आपने रिप्लाई फाइल किया है 148 ए बी का और उस रिप्लाई को कंसिडर ही नहीं किया, या फिर नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड रिफ्लेक्ट हुआ है उस रिप्लाई के फाइंडिंग्स में, मीनिंग देयर मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं। फॉर एग्जांपल, आपको शो कॉज नोटिस रिसीव हुआ है जिसमें बोला है कि आपने प्रॉपर्टी सेल करी है ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर। आपने उसका रिप्लाई दिया कि हमने कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं करी है, हमने ये प्रॉपर्टी परचेज करी है। आपने उसका रिप्लाई दिया है कि हमने प्रॉपर्टी परचेज करी है एंड असेसिंग ऑफिसर ने जब 148 ए डी या 148 ए थ्री का ऑर्डर निकाला उसमें उसने ये लिखा, दो चीजें लिख सकता है। या तो वो ये लिख सकता है कि मैंने आपसे पूछा कि आपने प्रॉपर्टी परचेज सेल करी है, आपने बोला कि नहीं मैंने प्रॉपर्टी परचेज करी है, आपने ये प्रूफ नहीं किया कि आपने ये प्रॉपर्टी सेल करी है। जब हमने ये लिख दिया, बोल दिया इसको कि हमने प्रॉपर्टी नहीं सेल करी है, तो वो कह रहा है कि आपने प्रूफ नहीं किया कि आपने प्रॉपर्टी सेल नहीं करी है, तो उस केस में मैं 148 इशू कर देता हूं। दिस इज सिंपली नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। या तो वो एक अलग इंडिपेंडेंट फाइंडिंग लेके आए कि हमने बोला कि हमने प्रॉपर्टी सेल नहीं करी है, वो कह रहा है आपने सेल करी है, फिर उसके बाद वो उसको उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करे, वो उससे इंडिपेंडेंट फाइंडिंग्स लेके आए कि आपने ये प्रॉपर्टी सेल करी है। सब रजिस्ट्रार से फाइंडिंग्स लेके आए, किसी और थर्ड पार्टी से फाइंडिंग लेके आए कि हैज टू रिबट आवर स्टेटमेंट्स कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग मेड करी है। ओनली देन प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड वुड बी रिफ्लेक्टेड। तो प्रॉपर एप्लीकेशन, इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन ऑफ माइंड हैज टू बी देयर इन द ऑर्डर पास्ट। या फिर अगर आपको
डिफेक्टिव सर्विस ऑफ नोटिस, आपको प्रॉपरली वो नोटिस नहीं मिला, डिफेक्टिव सर्विस ऑफ नोटिस है, तो उस केस में नोटिस अंडर 148 क्वैश होगा। या फिर अगर आपका नोटिस असेसमेंट ईयर 15-16 में इशू हुआ है, 15-16 से परटेन कर रहा है, किसी का भी नोटिस अगर 15-16 में परटेन कर रहा है एंड उसका मार्च 2022 में उसके नोटिस अंडर 148 इशू हुआ है, तो वो टाइम बार डिक्लेयर हो जाएगा बाय राजीव बंसल, बिकॉज टोला की लिमिटेशंस उसको नहीं बचा पाएगी, नहीं सरवाइव कर पाएगी। वो नोटिस वुड बी टाइम बार्ड बिकॉज असेसमेंट ईयर 15-16 में टोला एप्लीकेबल नहीं था। टोला इज ओनली एप्लीकेबल फ्रॉम 20th March 2020 till 30th June 2021। और 15-16 में किसी का भी इन दो डेट्स में 15-16 में ड्यू डेट नहीं आ रही थी, तो उसके केस में टोला नहीं एप्लीकेबल है एंड वो केस बिकॉज ऑफ राजीव बंसल क्वैश हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर किसी का असेसमेंट ईयर 18-19 का नोटिस है, अगर किसी का 18-19 का नोटिस है और उसने अप्रूवल ले रखी है हायर अथॉरिटी से अप्रैल 2022 में, इस तरीके के बहुत ज्यादा केसेस आते हैं, इसी वजह से मैं आपसे शेयर कर रहा हूं ये स्पेसिफिक इंस्टेंसेस कि अगर कोई 18-19 का नोटिस है जो कि मार्च 2022 में उसने 148 इशू करा है, तो वो ज्यादातर अप्रूवल इनवैलिड है बिकॉज रॉन्ग अथॉरिटी से अप्रूवल ले रखी है। जो अप्रूवल 3 साल में ले लेनी चाहिए थी, उन्होंने मोर देन 3 years में ली है एंड देयर फोर रॉन्ग अथॉरिटी से अप्रूवल ले ली है एंड देयर फॉर द असेसमेंट ईयर 18-19 अप्रूवल जो है वो बैड इन लॉ है, वो ऑटोमेटिकली नोटिस अंडर 148 को बैड इन लॉ कर देंगी। अब इस समय एज ऑन 30th June 2026, एज ऑन 30th June 2026 सर्टन नोटिस थे जो कि इशू हुए हैं। कौन कौन से नोटिस इशू हुए हैं प्राइमरीली? सर, ई वेरिफिकेशन स्कीम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मांगना डिपार्टमेंट से कि आप दे दीजिए। ई वेरिफिकेशन स्कीम, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। पंकज जी, हम आपका जो कैश डिपॉजिट वाला केस है वी कैन डिस्कस ऑन कॉल, वो हम प्रॉपर उसकी डिस्कशन कर सकते हैं ऑन फोन, क्योंकि उसको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब जो ई वेरिफिकेशन, अब जो नोटिस इशू हुआ है एज ऑन 30th June, वो प्राइमरली इशू हुआ है फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 या फिर फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड असेसमेंट ईयर 2021। इन 2 सालों के प्राइमरली नोटिस 148 के इशू हुए हैं एंड जो भी एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लिमिटेशंस है वो हमें ध्यान में रख के चलना है कि इन केस एक्सटेंडेड पीरियड में आपका नोटिस इशू हुआ है, मतलब 5 years में आपका नोटिस इशू हुआ है, तो उस टाइम पे डिपार्टमेंट के पास कंक्रीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए दैट देर इज एस्केपमेंट ऑफ इनकम। एक यूजुअल इंफॉर्मेशन वोंट बी एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सटेंडेड पीरियड, मीनिंग देयर बाय कि जब भी कोई इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, अगर कोई इंफॉर्मेशन है जो एआईएस में ऑलरेडी अवेलेबल है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, अगर डिपार्टमेंट को उसे यूज भी करनी है, हमने वो रिफ्लेक्ट नहीं करी आईटीआर फाइलिंग में, तो डिपार्टमेंट शुड नॉट इन्वोक एक्सटेंडेड पीरियड। 5 years की लिमिटेशन उस पीरियड के लिए, उस तरीके की इंफॉर्मेशन के लिए नहीं लेंगे, वो 3 years में हो जाना चाहिए। 5 years में अगर वो इशू हो रहा है तो वो प्राइमरली ऐसे केसेस होते हैं जिसमें डिपार्टमेंट के पास सर्टेन फ्रेश इंफॉर्मेशन आई है। अगर उनके पास फ्रेश इंफॉर्मेशन आई है या कोई कंक्रीट इंफॉर्मेशन आई है जिससे एस्केपमेंट पता लग रहा है,
तो उस केस में डिपार्टमेंट शुड इन्वोक द एक्सटेंडेड पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ। कोई पर्सन है जिसने रिटर्न नहीं फाइल करी, अगर कोई पर्सन ने रिटर्न नहीं फाइल करी और वो रिटर्न जब फाइल करते टाइम पे डिपार्टमेंट ने ये नोटिस इशू कर दिया कि आपकी रिटर्न फाइल नहीं हुई हुई है, एंड रिटर्न फाइल नहीं हुई हुई है, एंड उस केस में आपने कोई प्रॉपर्टी है जिसकी ग्रॉस वैल्यू है 60 lakhs, 60 lakhs की ग्रॉस वैल्यू आपने प्रॉपर्टी बेची है, तो डिपार्टमेंट असेसिंग ऑफिसर हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक व्हाट इज द एक्चुअल कैपिटल गेन रादर देन कि जो होल सेल अमाउंट है उसको वो एस्केपमेंट मांग लेता है। द ग्रॉस वैल्यू शुड नॉट बी ट्रीटेड एज एस्केपमेंट। द टैक्स वैल्यू, the profit value has to be, the income value has to be treated as escapement। तो मीनिंग देयर बाय अगर कोई ग्रॉस इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे आप ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि मेरी एक्सटेंडेड पीरियड इन्वोक हो रहा है, तो दैट इज बैड इन लॉ। उस तरीके के नोटिस नहीं इशू हो सकते हैं या वो चैलेंजेबल होंगे बिफोर द ट्राइब्यूनल या हाई कोर्ट। अब यहां पे मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस डाले हैं और ये क्वेश्चंस ये बताते हैं कि अगर 148 का नोटिस इशू हुआ है, जब भी 148 का जब भी नोटिस इशू हुआ है, तो आपको एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ओनली मेरिट्स पे ही रिप्लाई नहीं बनाना। मेरिट्स पे तो हम बनाते ही है रिप्लाई, लेकिन आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस है जो आपको अपने आप से पूछना है कि क्या जो अप्रूवल्स है वो करेक्ट ऑफिसर्स ने ग्रांट करी है कि नहीं करी है, क्या इंफॉर्मेशन जो है वो इनसाइड पोर्टल की इंफॉर्मेशन थी या वो आर्बिट्रेरली उसने असिस्टिंग ऑफिसर ने इशू कर दिया नोटिस, क्या 149(1)(b) की इंफॉर्मेशन या लिमिटेशन प्रिस्क्राइब हो रही है कि नहीं हो रही। मीनिंग देयर बाय कि असेसिंग ऑफिसर अगर एक्सटेंडेड पीरियड इन्वोक कर रहा है तो क्या उससे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि tangible material is in possession with the assessing officer। tangible material का क्या मतलब, उसके पास कोई इन्वेस्टिगेशन विंग की रिपोर्ट आनी चाहिए जिसमें एस्केपमेंट के बारे में प्रॉपर लिखा हो और उसके बेसिस पे वो करेक्टली कंप्यूट करेंगे अंडर की लिमिटेशन 5 years की होनी चाहिए या लिमिटेशन 3 years की होनी चाहिए। मेरे पास ऐसे मैटर्स है जिसमें जो इंफॉर्मेशन आई है वो आई है 2022 में और असेसिंग ऑफिसर उसको इन्वोक कर रहा है 2024 में और वो एक्सटेंडेड पीरियड के हिसाब से उसे इन्वोक कर रहा है, जबकि वो उसे 149(1)(a) के पीरियड के हिसाब से इन्वोक कर सकता था, बट ही डिड नॉट इन्वोक, ही इन्वोक्ड 149(1)(b) के पीरियड में। तो बेस्ड ऑन दैट वो रीअसेसमेंट नोटिस जो है वो इनवैलिड है बिकॉज करेक्ट लिमिटेशन कंप्यूट नहीं हुई है। जब शो कॉज नोटिस आया है, अगर उसका रिप्लाई दे दिया गया है एंड उसके रिप्लाई देने में नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड दिख रहा है इन एडजुडिकेटिंग द 148(a)(d) या 148(a)(3) के ऑर्डर में, तो इन दैट केस जो अप्रूवल होगी या 148 का नोटिस होगा दैट बिकम बैड इन लॉ। क्या आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दिख रही है शो कॉज नोटिस से जिससे ये पता लगे कि देयर इज एन एस्केपमेंट? मीनिंग देयर बाय अगर बोगस परचेज का केस है, फॉर एग्जांपल बोगस परचेज का केस है और बोगस परचेज के केस में डिपार्टमेंट कहता है कि आपने एक ABC, यहाँ पे किसी ने लिखा था कि मेरा बोगस परचेज का मैटर है, अगर उसके बोगस परचेज के मैटर में डिपार्टमेंट कहता है आपने ABC से परचेज किया है और हमें ये लगता है कि ये बोगस है, तो दिस इज एन इनसफिशिएंट शो कॉज नोटिस। ये शो कॉज नोटिस क्वैश होगा बिकॉज फॉर अ वैलिड शो कॉज नोटिस बोगस परचेज के मैटर में दे शुड मेंशन कि
आपने इन पार्टीज से परचेज किया है, एंड ये पार्टीज बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये पार्टीज बोगस है। अगर उन्होंने पार्टी के बोगस होने का रीजन ही स्पेसिफाई नहीं किया, then that is an insufficient information which suggests escapement of income. There should be sufficient information for escapement, and information वो कब होगी, जब उन्होंने रीजन प्रॉपर मेंशन करे होंगे कि why we are saying that these are bogus parties. Merely you have done transaction with these party does not provide that you have made any bogus purchase. अब रिसेंटली डिपार्टमेंट ने ये भी मैंडेट कर दिया है कि आपको जितने भी एनेक्चर्स है वो आपको प्रोवाइड करने हैं 148 के नोटिस में। दिस इज आफ्टर जून 2024, आफ्टर 28 जून 2024 सीवीडीटी प्रिस्क्राइब्स कि आपको सारे एनेक्चर्स मैंडेट करने हैं। अगर उन्होंने एनेक्चर्स मैंडेट नहीं करे, नहीं प्रोवाइड करे while issuing the notice, then आप उसको एक इरेगुलरिटीज में काउंट कर सकते हैं। दिस इज अ सीरियस वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल कि आपको एनेक्चर जो है वो नहीं प्रोवाइड करे गए। और अगर ऐसा केस है कि 148 ए का नोटिस ही नहीं दिया और वो ई वेरिफिकेशन स्कीम के एक्सेप्शन से भी बाहर है, तो उस केस में आपका 148 नोटिस जो है वो क्वैश हो जाएगा, बिकॉज लॉ मैंडेट्स that it is mandatory to issue 148A notice, show cause notice before every 148 unless it is coming into the exceptions। या तो वो सर्च एंड सीजर के प्रोविजंस में हो जो अप टू फाइनेंस एक्ट 2024 तक था एप्लीकेबल, या तो वो 24 फाइनेंस एक्ट 2024 से पहले तक का प्रोविजंस हो, या फिर वो आफ्टरवर्ड्स हो। तो ई वेरिफिकेशन स्कीम के बेसिस का एक्सेप्शन है, अदरवाइज आपको मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी अंडर 148 देना इज मैंडेटरी। और 2-3 और चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहला ये है कि क्या 148 नोटिस इट हैज बीन इशूड बाय द करेक्ट असेसिंग ऑफिसर। दूसरा, इन केस कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन आया है, कोई भी ऑडिट ऑब्जेक्शन आया है, तो आपको ये भी देखना है कि क्या असेसिंग ऑफिसर का एक्शन जो उसका है क्या वो इनवैलिड एज पर लॉ था। अगर वो एक्शन इनवैलिड था एज पर लॉ, ओनली इन दैट केस ऑडिट केसेस is eligible for 148 notices, otherwise those are not eligible for 148 notices। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑडिट ऑब्जेक्शन जो है वो तभी मिले जब आपका नोटिस असेसिंग ऑफिसर ने इनवैलिड कर रखा हो। तीसरी चीज, एज इन असेसमेंट में हमें ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि कोई भी जुरिस्डिक्शनल ऑब्जेक्शन है, कोई भी अगर हमें ऐसे ऑब्जेक्शन दिखते हैं वो हमें ड्यूरिंग द अपील ही बना देने चाहिए, उनको सबमिट कर देने चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये करेक्ट कर लेगा, ये इसे सप्लीमेंट फर्दर आके इसे सप्लीमेंट कर देगा। अगर वो उसे सप्लीमेंट करेगा तो उस केस में वो इनवैलिड ट्रीट माना जाएगा, एंड डिपार्टमेंट इनफैक्ट ट्राइब्यूनल लेवल पे ये पूछते हैं कि आपका जो जुरिस्डिक्शनल ऑब्जेक्शन था वो आपने असेसमेंट में या सीआईटी अपील्स लेवल पे लिया है कि नहीं लिया। इन केस कोई जुरिस्डिक्शनल ऑब्जेक्शन जो है वो सीआईटी अपील में नहीं लिया तो वो आपके केस को वीक करता है। तो देखिए, जो असेसमेंट है दैट इज प्राइमरली अ ट्रायल। एक ट्रायल है जो कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में उसे ट्रायल कहते हैं, इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स में या फिस्कल लॉ में उसको असेसमेंट्स कहते हैं, जीएसटी में उसे ऑडिट कहने लगे हैं। बट अल्टीमेटली जो भी ट्रायल आपका हो रहा है उसमें आपको सारे ऑब्जेक्शंस लेने हैं, बिना ये सोचे कि असेसिंग ऑफिसर क्या इसमें बोलेगा या क्या ये सोचेगा या क्या इसे करेक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता। बिकॉज हायर अथॉरिटीज की इंपॉर्टेंस इस चीज में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब वो ये देखते हैं कि इन्होंने ऑब्जेक्शन लिया था
एंड मैंने जो मैक्सिमम केसेस देखे हैं जो ट्राइब्यूनल से रिलीफ मिलता है वो प्राइमरली इस चीज में मिलता है कि जो भी ऑब्जेक्शंस असेसी ने लिए बट उसके कॉरस्पॉन्डिंग रिप्लाई असेसिंग ऑफिसर नहीं कर पाया, तो उन केसेस पे आपको ग्रॉस वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस का रिलीफ मिल जाता है। तो देखिए अल्टीमेटली आप जो भी रिप्लाई बनाएंगे उसमें आपको यह ध्यान रखना है कि नोटिस जो भी आप मेरिट्स पे रिप्लाई बनाएंगे उससे पहले आपको यह देखना है कि क्या वो जुरिस्डिक्शन पे सरवाइव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। जितने ज्यादा आप ऑब्जेक्शंस उसमें जुरिस्डिक्शनल या प्रोसीजरल डिफेक्ट्स के बता पाए वो उतना ही अच्छा होगा। एंड वो डिफेक्ट जो है वो अगर असेसिंग ऑफिसर सब्सिक्वेंटली उनको ठीक करने की कोशिश करता है, दैट डज नॉट absolve him the error which is already committed, and courts are very much aware about those। उनको असेसिंग ऑफिसर की वर्किंग के बारे में पता है। इश्यू तब आता है जब हम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट असेसमेंट कराते हुए ये चीज घबराते हैं कि ये इसे करेक्ट कर लेगा तो मेरा जो प्रॉपर रिप्लाई है वो उसमें मैं नहीं दूं, या मैं ये रिप्लाई दूंगा तो मेरा और दूसरा नोटिस खोल देगा 148 का। तो इस तरीके की जो हमें अपनी थिंकिंग है उसको चेंज करना है। लॉ की थिंकिंग ऐसे है कि आपको ऑब्जेक्शन रेज करना इज मच मोर इम्पोर्टेंट। अब सबसे पहले आपको मेरिट्स पे जाने से पहले हर नोटिस के रिप्लाई में आपको जुरिस्डिक्शनल डिफेक्ट के ऑब्जेक्शंस लेने हैं, और जब आपने वो ऑब्जेक्शंस ले लिए हैं उसके बाद आपको वो सारे के सारे जुरिस्डिक्शनल डिफेक्ट्स के लेने के बाद आपको मेरिट्स में जंप अप करना चाहिए कि ये मेरे मेरिट्स पे केस होगा। और उसके बाद आपको हर इनफैक्ट 148 ए बी या जब शो कॉज नोटिस है हर में आपको पर्सनल हियरिंग भी डिमांड करनी चाहिए। एंड जब वो तो सबसे पहले आपको जुरिस्डिक्शनल नोटिस, देन मेरिट्स एंड देन नेचुरल जस्टिस की आपको डिमांड करनी चाहिए, और उसके बाद एक प्रॉपर 148 का रिप्लाई या जुरिस्डिक्शनल असेसमेंट या रीअसेसमेंट प्रोसीजर्स फुलफिल होते हैं। आजकल के जो 148 के जो नोटिस है वो प्राइमरली आ रहे हैं बेस्ड ऑन बोगस परचेजेस कि जिसमें अल्टीमेटली ट्राइब्यूनल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में एडिशन कर देती है, या फिर कोई पॉलिटिकल डोनेशन के जो मैटर्स होते हैं एटीजीजीसी के वो अब इस समय डिपार्टमेंट उनके 148 भेज रहा है, या फिर अगर कोई इंटरेस्ट ऑन लैंड कंपनसेशन है उनके डिपार्टमेंट नोटिस भेज रहा है, या फिर अगर उसको कोई जीएसटी डिपार्टमेंट से सस्पिशियस एंट्रीज दिखती है उन केसेस में डिपार्टमेंट नोटिस भेज रहा है, या फिर कोई लार्ज कैश विड्रॉल या कैश डिपॉजिट वाली ट्रांजैक्शंस है उनके बेसिस पे डिपार्टमेंट एसएफटी के बेसिस पे नोटिस भेज रहा है। अगर प्रॉपरली कैपिटल गेन 54 या 54F वो नहीं रिफ्लेक्ट कर पाए, या फिर वैल्यूएशन के बेसिस पे भी नोटिस आ रहे हैं 50C की बेसिस पे, तो इन तरीके के मैटर्स में डिपार्टमेंट नोटिस भेज रहा है। या फिर आजकल ट्रस्ट के मैटर्स में भी नोटिस भेज रहा है कि अगर आपने सर्टेन वायलेशन कर दिया है तो ट्रस्ट की एग्जम्पशन 12A की एग्जम्पशन जो है वो डिनाई बैक हो जाती है। तो दीज आर द 6-7 केसेस जिसमें ऑलमोस्ट 80% ऑफ द रीअसेसमेंट नोटिस जो है वो कवर हो रहे हैं। ये ब्रॉड कैटेगरीज फॉर्म होती है, ये दीज आर द बेसिक फ्रेगमेंट्स ऑफ 148 केसेस। तो 90% या 80% लोगों के पास इसी तरीके के फ्रेगमेंट्स में ही नोटिस आए होंगे, और उन सारी फ्रेगमेंट्स का ये सारी फ्रेगमेंट जो है अब सारी की सारी जो भी मैंने यहाँ पे फ्रेगमेंट लिखी है सारी पोजीशन सेटल हो चुकी है ट्राइब्यूनल में, हाई कोर्ट्स में, और इनमें नया कोई रिलीफ या नई सिचुएशन कोई डेवलप नहीं होती है। आपको अगर आईटीएटी में या हाई कोर्ट में ऐसे मैटर्स के रिगार्डिंग में कोई ओपिनियन चाहिए देन आई एम देयर, एंड आप लोग मेरा नंबर नोट कर सकते हैं।
जिसमें मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि इस तरीके के जो भी मैटर्स है उसको आपको किस तरीके से आपको हैंडल करना है। और मैं सिंपल आपको यही बताऊंगा कि दीज आर द जुरिसडिक्शनल डिफेक्ट्स विच यू कैन पुट इन योर रीअसेसमेंट नोटिस, और आपको इसमें कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं है फुलफिल करने की। ये इंपॉर्टेंट जुरिसडिक्शनल डिफेक्ट्स है, वो अगर आप मेंशन कर लेंगे तो आपका मेजरली केस रिजॉल्व हो जाएगा। मैंने देखा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या टैक्स प्रोफेशनल्स बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं ऐसे, जब उनको इस तरीके के उनके क्लाइंट्स को नोटिस आता है वो काफ़ी घबरा जाते हैं। एंड अल्टीमेटली अगर उनको कुछ 2-3 जुरिसडिक्शनल डिफेक्ट्स पता लग जाते हैं तो उनका आगे चल के केस बहुत टेंशन फ्री हो जाता है एंड उनको इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज बैक ऑफ द माइंड दे नो कि वी हैव स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स इन आवर स्लीव्स। तो विद दिस आई विल एंड माय सेशन, और अगर किसी को कोई भी क्वेरी हो विद रिगार्ड टू 148 तो आई एम रेडी टू आंसर देम। सर 148 की तो नहीं है, बट इसमें जो आपने लास्ट 6 रीजंस बताए थे, एक सेकेंड, आवाज आ रही है सर? जी जी जी। सर जिसमें जीएसटी मिसमैच है इनकम टैक्स रिटर्न के साथ, हाँ हाँ। मैं 1-2 क्लाइंट के केस में लकी हूँ, मेरे पास नोटिस नहीं आया है, बट मेरे को ये जानना था कि उनकी हम प्रिजम्पटिव टैक्स भरते हैं सर, प्रिजम्पटिव इनकम भरते हैं, उस केस में क्या पिछले नोटिस खुल सकते हैं, या फिर इस केस में हमें कैसे इस बार हम और ज़्यादा प्रिकॉशन कैसे ले सकते हैं? मैडम सॉरी, किसी का फोन आ गया था, एक बार फिर से बताएंगे? सर जो आपने एक रीजन बताया है कि जीएसटी मिसमैच रहता हाँ, है इनकम जीएसटी टैक्स रिटर्न मिसमैच के के साथ, बेसिस पे आ सकते हैं, करेक्ट, जो आते ही है, रेगुलरली आते हैं। वो मैं कह रही हूँ कि मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे को भी एक क्लाइंट के केस में नहीं आया है। ठीक है। आई थॉट द रीजन बीइंग कि देखिए प्रीवियस ईयर्स में वो मेरे पास नहीं था, किसी अन्य से, किसी मतलब किसी दिल्ली में थे, वो किसी केस से काम करवा रहे थे, बट इस बार क्या है ना सर, वो जो जीएसटी में 3B में आता है ना, वो तो वो रिटर्न ले लेते हैं, टर्नओवर ले लेते हैं, ठीक है, बट जो उनका टीडीएस कटता है जीएसटी पे, वो वाली टर्नओवर उन्होंने ली नहीं थी। तो लास्ट ईयर हमने उसको ऑन लेकर तो आए हैं प्लेटफॉर्म पे, अब हमारा इनकम तो मैच करता है, बट फॉर प्रीवियस ईयर्स, क्योंकि प्रीवियस ईयर के केस खुल सकते हैं, तो इस ईयर की आईटीआर भरते वक्त प्रिजम्पटिव टैक्स इनकम में मैं उनको भरती हूँ, तो उसमें हम क्या ध्यान रखेंगे इसमें? नहीं देखिए मैम, जो आपको प्राइमरीली ये ध्यान रखना है कि जब आप प्रिजम्पटिव भरते हैं तो आपकी जो भी जीएसटी में आपकी 9 में या जो भी आपकी एनुअल रिपोर्ट में, अगर एनुअल रिपोर्ट बन रही है तो 5 करोड़ से नीचे की है, तो उस केस में आपका जो भी टोटल जीएसटी टर्नओवर है वो आपकी टर्नओवर डेफिनेटली होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू योर इनकम टैक्स रिटर्न। अगर वो नहीं है तो उसके पास आपके पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि वो क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ आगे फर्दर सेल रिटर्न हो गई है या कुछ भी चेंजेस आए हैं, उसके अंदर इंटरेस्ट इनकम है, नॉन जीएसटी वाली इनकम है, या फिर नॉन जीएसटी वाला प्रोडक्ट है उनका, तो उस तरीके की आपके पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए और आपका वो रिको बनना चाहिए, और वो रिको बनने के बाद आपको ये टर्नओवर आपको मेंशन करनी है और उसके बाद ही आप उसकी प्रिजम्पटिव में ऑप्ट करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, और किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज। सर पंकज दिस साइड, एक स्मॉल क्वेरी है सर। जी जी पंकज जी बताइए। सर जैसे हमारे केस में एसएससी ने कोई रिप्लाई नहीं किया था, ठीक है। तो वो कैंसर पेशेंट है। ठीक है। अब 1 साल के बाद उसने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करी है, तो उसके पास क्या मतलब वो ऐसा सबमिट करे, क्योंकि उसकी जो कैंसर की प्रॉब्लम है वो अभी नहीं हुई है, वो 2021 से है, और वो एलआईसी कमीशन भी रिसीव कर रहा है हर ईयर में, और उसकी रिटर्न फाइल करता है। ठीक है सर, देखिए उनको प्रेजेंट कुछ नहीं करना है, उनको बेसिकली कोर्ट्स को ये बताना है कि भाई बिकॉज ऑफ मेजर हेल्थ अलाइनमेंट, मेजर हेल्थ जो प्रोस्पेक्ट्स है डिसऑर्डर हुआ है, उसके बेसिस पे एडमिट द रेट, इवन इट हैज बीन फाइल्ड बिलेटेडली, बिकॉज यूजुअली कोर्ट्स जो है वो डेथ के केसेस में एंड ऐसी सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम के केसेस में कंपैशनेट होती है। तो अगर आपको एडमिट करवाना है अपना मैटर,
तो आपको इस तरीके की जजमेंट्स लेके जाइए जाकि जज जो है वो रिलेटिवली कन्विंस रहे कि ठीक है मैं एडमिट कर लेता हूँ, दैट इज इट। और बाकी जो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है विद रिस्पेक्ट टू देयर हेल्थ अपडेट्स वो आपको रेट में अटैच करने हैं। ठीक है सर, थैंक यू। और किसी मेंबर की कोई क्वेरी है? ओके ठीक है। सर, वैसे आपने सब कुछ कवर करा है, सबको एक्सप्लेन करा है खुद ही अपनी ओर से, या आपने केसेस भी लिए हैं और उस केस सर्कमस्टांसेस में हमको कैसे कैसे रिप्लाई करना चाहिए। इट वाज अ वेरी नाइस एंड लर्निंग सेशन। थैंक यू। अभी कहीं हम कहीं टेक्निकल फंसेंगे तो ही रह गया, बाकी बाकी सब आपने सर बहुत अच्छे से क्लियर किया। थैंक यू सो मच थैंक यू। on behalf of all our members and Raj Chawla sir सर अगर and our 90 team. डेज में रिटर्न फाइल नहीं हो तो उस केस में क्या होगा? अगर 90 डेज में रिटर्न फाइल नहीं होती है तो फिर यू आर एट द मर्सी ऑफ द असेसिंग ऑफिसर कि वेदर ही विल एक्सेप्ट द रिटर्न और नॉट। और अगर नहीं एक्सेप्ट करता वो रिटर्न तो वो एक्स पार्टी ऑर्डर काउंट होगा 144 के ऑर्डर। बट अगर आपका अभी प्रोसीडिंग्स चल रही है और आपने नहीं फाइल करी है तो बेटर है फाइल कर दीजिए। एटलीस्ट यू कैन शो कि हमने फाइल कर दी है। नाउ इट इज अप टू द असेसिंग ऑफिसर वेदर ही विल इशू 143(2) मीनिंग देयर बाय कि ही हैज एक्नॉलेज योर फाइलिंग ऑफ द रिटर्न। अब वो उसकी मर्जी पे है। मीन्स आप ट्राइब्यूनल लेवल पे जाके ये नहीं कह सकते कि इन्होंने एक्स पार्टी ऑर्डर क्यों कर दिया। सर मेरा जो ओरिजिनल रिटर्न फाइल है मैं उसको एज इट इज रखना चाहता हूँ। हाँ, आप एज इट इज ही रखिए, लेकिन आपको फाइल करनी पड़ेगी वो रिटर्न। मैंने तो ये वो बताया कि अपलोड आप कैसे, मतलब पोर्टल से अपलोड होगी वो रिटर्न? हाँ, वो आप इनकम टैक्स पोर्टल में जाएंगे, उस इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके देखेंगे कि भाई उसमें 148 का जहाँ पे नोटिस आ रहा होगा वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको फाइल करने का ऑप्शन देगा। अगर वो ऑप्शन सपोजिंगली डिसेबल हो गया है, ऐसे भी पॉसिबिलिटी है कि वो डिसेबल हो गया है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। आप सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं असेसिंग ऑफिसर से कि वी वांट टू फाइल द रिटर्न, स्टिल देयर इज टाइम, स्टिल द मैटर वुड द टाइम लिमिट इज अप टू 31 December 2027, still there is time, we want to fully comply with the provisions and we want to fully cooperate with your reassessment proceedings, so let us kindly reopen the portal. अच्छा सर, एक और चीज देखिए, हाँ जी। रिप्लाई हमने देख लिया, हमने प्रोविजंस अच्छे से समझ लिए। अब मोस्टली क्या करते हैं ना, हम लोग थोड़ा सा चैट जीपीटी का या ChatGPT का भी सहारा लेते ठीक है। हैं। तो अभी है। आप मुझे थोड़ा सा हाईलाइट, मतलब अगर 5 मिनट प्लीज ये बता सके कि हम रिप्लाई करने के लिए हम किस चीज को बेटर रेफर करें, क्योंकि आज की डेट में क्या है ना कि अगर अपने आप भी बनाते हैं तो भी, लेकिन फिर भी मन करता है एक बार रिप्लाई देख लेते हैं कि इसका कैसे आता है। नहीं नहीं, उस बिल्कुल केस में बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं प्राइमरली मैं खुद वाया एआई से ही बनाता हूँ। मैंने मतलब पता नहीं, शायद हो सकता है लास्ट 1 year और 6 month से मैंने आज तक कभी कोई ड्राफ्ट नहीं करा खुद से। ओके सर। लेकिन ओनली थिंग इज कि आपको एआई को प्रॉपर प्रॉम्प्ट्स देने पड़ेंगे कि आप इस पॉइंट पे लिखिए, बट वो आपको ही डिटरमाइन करना पड़ेगा कि ये जुरिसडिक्शनल डिफेक्ट है या ये इसका आंसर होगा। वो जुरिसडिक्शनल डिफेक्ट जो है वो आपको ही एआई को बताना पड़ेगा। वो खुद से जो वो निकालता है उसकी इतनी वो नहीं है। लेकिन हाँ, एक बार आपने पॉइंट आउट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल आपके पास नोटिस आया 148 का, आपने ये बताया कि ये वार्ड मेरे को आया है 26(1) से, और आपने बोला कि भाई मेरा वार्ड जो है दैट शुड बी 22(1). अब आप वो वाला नोटिस जो है 148 का उसमें डालेंगे अपने एआई टूल में, एंड यू हैव टू राइट दैट देयर इज अ टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन डिफेक्ट इन दिस notice, it has been issued from this, it should be issued by this, and therefore draft a रिप्लाई single pala reply for it। तो वो बना देगा आपका। बट हाँ, जो सर इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको ही मेंशन करके उसको देने पड़ेंगे। सर ChatGPT में जो हमारा है डायरेक्ट टेक्स्ट वाला, वो हमें रेफर करना चाहिए रिप्लाईज के लिए?
मैडम मैंने ना एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ChatGPT को यूज़ नहीं करा है, तो मैं नॉट द करेक्ट पर्सन टू आंसर दिस। आप कौन सा टूल यूज करते हो सर? मतलब क्यूरियोसिटी। मैडम मैं तो खैर मैंने ChatGPT का प्रो लिया हुआ है, क्लॉड लिया हुआ है, बस यही दो यूज़ करता हूँ। ठीक है सर, क्लाउड बिल्कुल हाई पे ही है, ठीक है। हाँ। मतलब सर ये था क्योंकि लर्न कर लिया है अपना प्रीवियस फाइनेंस एक्ट से, और इस बार जो नया एक्ट है उससे तो मैच हो गया, क्लैरिटी इज ओके। तो जी। लेकिन एआई का थोड़ा सा इसलिए पूछ रही थी क्योंकि रेफर हो नहीं जाएगा, नहीं, डाउट नहीं ठीक है रहेगा। मैम, ठीक है ठीक है। थैंक यू सर। ओ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। थैंक यू सर। अरे अगर नोटिस नहीं, यू कैन कंटिन्यू सर प्लीज। शिखर जी शायद आउट नहीं। चलो उनको पर्सनल फोन कर दो मैम, थैंक यू। ठीक है सर, नंबर होगा सर आपके पास या मैं चैट बॉक्स में डाल दूं? प्लीज शेयर। कर देते हैं सत्यम सर, सर का नंबर जरा चैट बॉक्स में शेयर कर देना प्लीज। कर दिया था मैम उन्होंने। अच्छा ठीक है सर, ओके, गुड डे सर एवरीबॉडी, बाय।